Walaikum assalam, Ishal. Walaikum assalam, everyone. Assalamu alaikum, dear participants and all the viewers who are watching us live on our Facebook page, Rehan AI Teachers Institute. And you guys can watch the recording on our YouTube channel named as Rehan AI Teachers Institute. Myself, Maryam Zulfikar, training Wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and facilitating at Rehan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp. Tonight is 31st July 2025. The time is 11 minutes past 9 UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. So I welcome all the participants in today's class. I hope you guys are feeling much relaxed and rejuvenated. So let's start our class with meditation, and I request all the participants please practice the meditation video properly so that you can feel more relaxed and rejuvenated after the meditation. So I'm sharing my screen. In the meantime, please set your position properly and set properly. That's actually the mandatory thing for the meditation. Your back should be straight, your neck should be straight while meditating, and relax your body muscles, relax your mind. Just go with the flow. Don't hold any kind of the thinking that you don't think about this, you need to think about that. Don't think about it like this. Just go with that. जो भी जितनी भी दिमाग की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिस जिस सोच पे चल रही है उसको चलने दें ताकि आप बेहतर तरीके से मेडिटेशन कर सकें, ठीक है। और मेडिटेशन के दौरान अपनी थॉट्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कीजिए। Everyone, please turn on your cameras so that I can observe how many participants will go for the meditation. Hey there, and thanks for gifting yourself these next few minutes. It's important to remember that you're a priority, and allowing yourself even just a few short minutes of intentional reflection can really have a positive impact on the rest of your day. So let's use these next few minutes to come back to center and set an intention for the rest of your day. Move into a comfortable position, whether you're seated at your desk at work or laying on the couch at home, and gently close your eyes and shift all of your attention onto your breathing, taking slower, deeper breaths than you've taken all day so far. Taking a deep breath in through your nose and slowly letting it out through your mouth. And continuing to breathe that way, feeling your lungs expand out as you inhale and contract back in as you exhale. Tune into your body, noticing how it feels, noticing if there's anything that it's trying to tell you. Notice any place of tension or tightness in your body. Give those areas permission to relax, sending love into those areas. Thank your body for taking such good care of you, and let it know that it's okay to rest and relax for these next few minutes. You may notice that your mind starts to wander off. That's okay. That's natural. Just notice it and bring your attention back to your body, using your breath as your anchor. Try to picture one thing that's happened today that's made you smile, or made you thankful, or appreciative. And just let that feeling fill you up for a moment. Breathe that feeling in from the top of your head to the tips of your toes. And allow yourself to smile if that feels natural. Now focus on something that you can do today, whether it's for yourself or for someone else, that will allow you to continue feeling this way. It could be something as small as deciding to go to bed early tonight,
so that you have time to finally read that book that's been on your bedside table, or the joy of getting dinner with a close friend. What's one little thing you can plan for your day to bring that intentional joy to it? Now just focus on that for a few minutes. Sit in that feeling of joy and peace. Now let's take a few more deep breaths together. A deep breath in, feeling your lungs expand out as you inhale, and everything contract back in as you exhale. Again, an even deeper breath than the one before it, holding that breath for a beat, and exhaling everything out. Last time, your deepest breath yet, sending that breath through your entire body. And exhale it out. And in your own time, slowly bring your awareness back to where you are. And thank yourself for taking these few minutes to just be intentional and kind to yourself. And when you're ready, you can gently open your eyes and enjoy the rest of your day. Okay, participants, thank you so very much for practicing this meditation video. I hope now you're feeling more relaxed and rejuvenated. So, thank you so very much. Let's move toward the task. Before this, please share your challenges one by one regarding your task. और बस रुकना सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि आपके जो कोडिंग के 3 टास्क है क्या वो कंप्लीट हो गए या अभी भी उनमें कोई चैलेंज आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम, कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने कल करवा दिया था उसको डन और मैंने आज उसको कंप्लीट कर लिया। ओके ओके जबरदस्त हो गया। ओनली कैनवा इज फेसिंग इशू। आई एम अच्छा फेसिंग कैनवा का इशू। मसला है। चलिए वो नसीब भाई की तरफ से है, वो जैसे उनका वो टीम में दोबारा से एक्टिव होगी तो वो कर देंगे। जी मिस्टर, आपके क्या मैम मैम अभी आपने एक लफ्ज बोला था मेडिटेशन से पहले कि आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं करनी। तो मैं चाहती हूँ आप हमें ना इस पे बेशक 2 लाइनों में ही सही, मे बी आपके बताने से हम अपनी उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँ। एक आपने ये कहा तो हमने मतलब कैसे अंडरस्टैंड करना है इस बात को, और आपके हिसाब से मेडिटेशन क्या है? ताकि हम बेहतर समझ पाएँ। जो बेसिक मेडिटेशन के रूल्स हैं और जो चीजें मैंने अभी तक सीखी हैं, हमारे योगा मेडिटेशन के इंस्ट्रक्टर हैं मनोज योगा वाले, उनसे, और एक डॉक्टर टीपीएस हैं इंडिया के, आप उनसे कनेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। यही नाम वो बताते हैं अपना, टीपीएस के नाम से। मतलब अजीब से उनका नाम है जो कि पूरा प्रोनाउंस करना भी नहीं आता मुझे, मादत के साथ। अकॉर्डिंग टू दैट, और मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन और लर्निंग रही पिछले 1.5 साल की, उसके अकॉर्डिंग यही है कि जब भी आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, जब आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आती ही आती है। तो हमें कभी भी अपनी नींद को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप कंट्रोलिंग वाली स्टेट में ले जाएंगे ना, तो आप मेडिटेशन नहीं कर रहे। आप अभी भी अपने आप को और अपने माइंड को कंट्रोल करने की पोजीशन में, तो इसका मतलब है आप फोकस नहीं कर पा रहे। बचपन में हम सब ने मैट्रिक लिस्ट, शायद मुझसे कोई 2 साल 4 साल आप लोग सीनियर होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। आप सबने एक मैट्रिक में ने स्टोरी पढ़ी थी जिसमें जो है वो एक चाइनीज
किंग था, वो अपनी जो हेरिटेज है वो आगे जो है उसने वो हेरिटेज जो है वो ट्रांसफर करनी थी अपने बच्चों को। तो वो अपने एक बेटे को बुला के कहता है, प्रिंस ताय उसका नाम था, उसको कहता है कि मैं जब तक तुम एक छोटा सी असाइनमेंट है वो करके नहीं आते तो मैं तुम्हें अपनी हेरिटेज या यहाँ का किंग नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुमने वो काम करके आना है और तुमने मुझे बताना है कि तुमने क्या फील किया। ठीक है बाबा, आप मुझे बताएं क्या करना है। तो उसमें कहते हैं कि जाओ फलां जंगल में तुमने इतने दिन रह के आना है और इतने दिन के अंदर तुमने कुछ चीजें वहां पे ऑब्जर्व करनी और तुमने आके मुझे बताना है कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया। और वो बहुत परेशान होता है कि जंगल में मैंने क्या ऑब्जर्व करना है, मेरा काम तो इंसानों को टैकल करना था, इंसानों के साथ सारी डीलिंग होनी थी, तो मुझे इंसानों के साथ रहना चाहिए था और मुझे इंसानों की चीजों को समझना चाहिए था। मैं जंगल में जाके क्या करूंगा। वहां पे उसको जो है वो जंगल में कोई बहुत सीनियर पर्सन जो है वो जिसे कहते हैं हम के ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो उनको मिलते हैं और वो उनके साथ जो है उनको फिर वो समझाते हैं। तो कहते हैं कि मुझे इस तरह जंगल में भेजा गया मेरे बाबा की तरफ से और मुझे हेरिटेज जो है वो ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जब तक मैं यहाँ जंगल में रह के वो चीजें ऑब्जर्व नहीं कर लेता और वो जाके ऑब्जर्वेशन शेयर नहीं करता वो मुझे नहीं वो ट्रांसफर करेंगे, किंगशिप मुझे नहीं मिलेगी। वो फिर उसको समझाते हैं, ठीक है आप अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू कीजिए और फिर आप मुझे बताइए। अब वो एक दो दिन वहां रहता है जंगल में, उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैंने क्या ऑब्जर्व करना है और क्या यहाँ से मुझे मिलेगा जो मुझे सीख के जाना है। तो अगले दिन वैसे ही जाके उन बाबा जी को कहते हैं कि बस करें, मैं थक गया हूँ जंगल से, मुझे वापस जाना। तो बाबा जी फिर उसको समझाते हैं कि असल में उन्होंने आपको भेजा है नेचर को महसूस करने के लिए, आप नेचर को फील करो कि नेचर आपसे क्या कहना चाह रही है। अच्छा उसने कहा इससे क्या होगा, उसने कहा इसका जवाब भी आपको खुद ढूंढना है किससे क्या होगा। तो जब वो नेचर को अच्छा अब वो एक हफ्ता मजीद उस जंगल में रहते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती है और वो इतना फोकस होकर चीजों को सुनता है कि वो एक हफ्ते के बाद उन बाबा जी से दोबारा मिलता है तो बाबा जी कहते हैं हाँ अब सुनाओ, क्या सीखा आपने, क्या समझ में आया। तो वो बोलते हैं कि मैंने दरख्तों के पत्तों के गिरने की आवाज को भी महसूस किया, उन पत्तों के अंदर से जब हवा गुजरती है तो उसकी आवाज को भी मैंने महसूस किया, परिंदे सांस लेते हैं उसकी आवाज तक को मैंने महसूस किया। और अब मैं समझ सकता हूँ कि मुझे अपने उस राया में जब जाना है तो मुझे उनकी सांसों के वो जो हिचकियां हैं वो भी समझ में आनी चाहिए। मुझे ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर मेरी वजह से मेरी राया कहीं तंग हो रही है तो मुझे उसका भी रीजन पता होना चाहिए। तो अगर मैं एक अच्छा बादशाह बनना चाहता हूँ और अच्छी हुक्मरानी चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले अपनी राया की हर चीज का ख्याल रखना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप समझे कि आपको किसी जगह का हुक्मरान बनाया जाता है और आप वहां की चीजों को अपने घर की तरह ख्याल रखते हैं, आप अपने घर के हुक्मरान होते हैं और आप अपनी हर चीज को बहुत सलीके से तरीके से और बहुत केयर से संभाल के रखते हैं। अब मुझे समझ में आया कि मेरे अब्बा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। अब वो बादशाह के पास जाते हैं, बादशाह को जाके ये सारी बातें बताते हैं, बादशाह बहुत खुश होता है कि मैं जो चाहता था और मैं जो देना चाहता था वो मेरा बेटा सीख गया। अब वो जब उसको किंगशिप देता है तो कहता है मैंने नहीं लेनी, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ, क्योंकि आपके नीचे जितने लोग होते हैं ना आपको उतने लोगों का आंसरेबल होना पड़ता है। ये बात मैंने सीखी थी 2016 की बात है, हमारी एक इंटर्नशिप थी जिसमें एक ट्रेनर आए थे और वो HBL के मैनेजर थे, ओवरऑल हेड मैनेजर थे ऑल द ब्रांचेस ऑफ द पाकिस्तान। तो वो उन्होंने ये बात बताई थी कि मैं बहुत डरता था अल्लाह ताला मुझसे कोई ऐसी काम ना ले जिसमें मुझे अपने नीचे लोगों का जवाबदेह होना पड़े, क्योंकि मैं इस चीज से बहुत डरता हूँ कि अगर मेरी किसी एक बात से किसी का जायज हक ना मिल सका किसी को और किसी को नाजायज मैंने कुछ चीजें अलाउ कर दी तो भी मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो जितनी बड़ी पोस्ट होती जाती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आयद हो जाती है कि आपने इंसाफ भी करना है और आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझना भी है। अब अगर हम ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे माइंड का क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें फोकस किन चीजों पे रखना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अपनी ब्रीदिंग के थ्रू आपने उस नेगेटिविटी को रिलीज करना है अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी सब चीजों से। इसके साथ ही साथ अगर आप एक और चीज कर लें तो वो होता है वाटर थेरेपी, जिसको प्लेस को इफेक्ट भी कहते हैं। आप सबने उसको शायद सुना भी होगा और पता भी होगा
कि अगर आपको शावर लेते हुए अगर आप 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके पानी के नीचे खड़े हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कर दें और कुछ अफर्मेशंस अपनी जो है वो आपने वर्बली नहीं करनी, लेकिन आपके मेंटल प्रोसेस में वो चल रही हो, तो आप देखेंगे 10 मिनट के बाद जब आप शावर ले रहे होंगे 10 मिनट के अंदर अंदर आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे कि आपको लगेगा उस पानी के साथ साथ आपकी सारी नेगेटिविटी भी चली गई, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज हो गया। आपने जो बहुत ज्यादा नॉर्मली हमारी ये कंधे और हमारी गर्दन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती है, तो जब आप पानी के नीचे खड़े होते हैं तो ये सारी जितनी भी आपकी एक्सर्शन थी वो भी रिलीज हो जाती है, और आप जब शावर लेके निकलेंगे तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। तो ये पानी की खूबसूरती है कि आप जिस तरह से पानी को फील करोगे पानी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। मतलब वो एक बुक है पूरी, प्लेसिबो इफेक्ट पे, जिसमें कि अगर आप पानी को शिफा समझ के भी पी जाओगे ना तो उस पानी में आपके लिए शिफा बन जाएगी, और अगर आप उस पानी को ये समझ के पियो कि इसके अंदर कोई ना कोई जरासीम होगा तो वो वाकई ही आपको परेशान कर देगा और आप बीमार। तो इट्स द सेम प्रोसेस कि आप कोई भी काम करें जितनी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ करेंगे उतने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपके साथ क्रिएट होंगे। तो मेडिटेशन जो होती है वो बेसिकली आपके फोकस को इनहेंस करती है, आपकी क्रिएटिविटी को इनहेंस करती है, और स्पेशली आपको रिलैक्स करती है हर उस थॉट से जो कि सारे दिन की आपके पास चल रही होती हैं, और हमारा ब्रेन अलग बेचारा काम कर रहा होता है, बॉडी अलग काम कर रही होती है, बॉडी पार्ट्स अलग काम कर रहे हैं, और आप दूसरी डायरेक्शन में काम करें जो कि उन दोनों की नहीं है। तो हमारी आपस में इतनी जगह चल रही होती है कि हमें समझ नहीं आती सारा दिन हम कहाँ कहाँ किस किस माहौल में हमने लड़ना है। तो जब हम रात में बैठे तो सोने से पहले भी अपने आप को और इन सब चीजों को रिलैक्स करके सोएं ताकि आप सुबह हेल्दी और अच्छी नींद के बाद आप जाए। तो मेडिटेशन में अगर नींद आती है तो वो पॉजिटिव चीज है, उसको आना चाहिए। आप जितना रिलैक्स होंगे उतनी अच्छी नींद आएगी। इसके साथ ही साथ थॉट्स का मतलब ये होता है, मैंने जब ये कहा था ना कि गो विद द फ्लो का मतलब है कि आप अपनी थॉट्स को रोके नहीं। आपको ये नहीं याद रखना कि मुझे जबरदस्ती जागना है, भैया आपको नींद आ रही है आप थोड़ी देर सो जाए। जैसे जैसे मेडिटेशन का फील करेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे फील करेगी। अगर आपको वो कह रही है कि आपको अपनी ब्रीदिंग को फील करना, तो एक टाइम आएगा आप इतने फोकस हो जाएंगे कि आपको वाकई ही अपनी नाक से सांस आती हुई भी फील होगी, तो जब आप रिलीज कर रहे होंगे उसकी आवाज भी आपके कानों में सुनाई देगी। इस तरह से आपका फोकस बढ़ जाएगा। आप अगले 2 घंटे में जो भी काम करेंगे या 4 घंटे में काम करेंगे उसमें आप बहुत फोकसफुली होकर वो काम करेंगे। ये पर्पज है मेडिटेशन। जी ईशा। मैम मुझे ये पूछना था कि जो हम इंटरव्यू जिस डेट को देते हैं तो हमें गूगल शीट में उसी डेट पे वो उधर उसका लिंक पेस्ट करना होगा या स्टार्ट से? नहीं, आप जब देते हैं तब से पेस्ट करना शुरू कर दे, लेकिन ये है कि अगर आप स्टार्ट से कर लेंगे तो भी कह रहे कोई मसला नहीं कि मैंने इस डेट को स्टार्ट किए थे, कोई मसला नहीं है। आपके एक्चुअली अराउंड 30 इंटरव्यूज जो है वो काउंट होने चाहिए, बस ये है। ओके। लेकिन ये नहीं करें कि देखें एक दिन में 3 से 4 इंटरव्यूज करने की कैपेसिटी होती है इंसान की। आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन में 10 करने बैठेंगे तो इंटरव्यू फॉर सेक ऑफ इंटरव्यू हो जाएगा, बट आपकी लर्निंग नहीं होगी। ये छोटी सी चीजें हैं जिनका ख्याल कर ले, बाकी रेस्ट इज गोइंग गुड। ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट्स? किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई चैलेंज हो तो प्लीज बताइएगा। अदरवाइज लेट्स मूव टुवर्ड द टास्क। तो सबसे पहले मैं कोडिंग का टास्क शेयर करूंगी आप सबके लिए। आप कोडिंग का टास्क कंप्लीट करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टास्क, फिर हम दूसरे टास्क की तरफ जाएंगे। वी हैव डे 4 वीक 4। ओके जी, आई नीड टू borrow a ओके पार्टिसिपेंट्स, वी हैव टू क्रिएट ए क्विज गेम। आज आप सबने अपने अपने लिए एक क्विज गेम बनानी है, ठीक है, claude.ai से। और claude.ai आपके लिए बहुत अच्छा क्विज बनाएगा। आप उस क्विज को परफॉर्म भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूं कि जरूरी नहीं है कि जितना प्रॉम्प्ट मैं आपको कहती हूँ आप उतना ही देंगे। मैंने आपको पहले दिन ही ये चीज क्लियर की थी और दूसरे दिन उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दे के बताया था कि आप जितनी चीज इसके अंदर ऐड करते जाओगे, जितनी इंस्ट्रक्शन देते जाओगे, आपकी ऐप उतनी रिफाइन और अच्छी बनती जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको 10 मिनट के अंदर 4 प्रॉम्प्ट देने हैं तो आप दे दें।
आप उस ऐप को ज्यादा से ज्यादा अच्छी बनाए ताकि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा क्लाउड फॉलो कर सके, ठीक है। So let's complete the task number 1, coding with AI. Create a multiple choice quiz game using Claude.ai. और prompt आपके पास given है, इसी prompt के साथ सिर्फ एक sentence का addition कर दीजिएगा। और बाकी आप अपने लिए उसका थीम चेंज कर सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक आप और सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ साइंस का बना के दो, मुझे सोलर सिस्टम में बना दो। मतलब ये एग्जांपल्स हैं। आपने इंग्लिश का बनवाना है इंग्लिश का बना दें, आपने उर्दू का बनवाना है उर्दू का बना लें, आपने जनरल नॉलेज का बनवाना है जनरल नॉलेज बना लें। जैसा जैसा प्रॉम्प्ट देके वैसा आपके लिए क्लाउड जो ये सारी चीजें कर देगा। सुलेमान भाई, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, प्लीज सिट प्रॉपरली। I don't know why आज हमारी अटेंडेंस काफी शॉर्ट है। रीजन क्या है अभी तक ये नहीं पता चली मुझे। इसको 4 महीना वही चाहिए। So participants, please complete your task. In the meantime, I'm sending the other task in the WhatsApp group. And then अच्छा अब हमें हो गया 1 महीना, ठीक है। और आज से इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि अब आप मैक्सिमम टास्क अपने क्लास में कंप्लीट कर लें। और आफ्टर द क्लास, क्योंकि आई रियली नो दैट कि आप सबकी बहुत सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू हो जाएंगी, स्कूल शुरू होने वाले हैं, दूसरी चीजें भी साथ साथ चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इन सब चीजों को ख्याल करने के लिए अब आप कोशिश ये करेंगे कि अब आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ गए हैं। साथ साथ हम क्लास में ही चीजों को कंप्लीट कर लें ताकि आपके ये 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, ठीक है। किसी को कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मुझे बस साथ साथ ही बताता जाएगा ताकि हम क्लास के अंदर ही देन एंड देयर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लें, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम गुलशान, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इज एवरीथिंग ओके? वालेकुम अस्सलाम। मिस मरियम, मैंने ना एक मैसेज डिलीवर किया था 1 मिनट 9 o'clock। तो मेरे घर में ना एक्चुअली गेस्ट आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा गेस्ट, और अभी भी मैंने ऑफ कैमरा किया हुआ क्योंकि मैंने अभी चाय बनाने। तो प्लीज़ मुझे अगर किसी मेंबर को कोई एतराज़ ना हो तो मैंने अभी कैमरा ऑफ ही रखना है क्योंकि मैंने अभी चाय बनानी है। जी जी आप बना लीजिए। थैंक यहाँ यू। पाकिस्तान में तो गैस का बहुत मसला है, आप कैसे बनाएंगी? गैस आ रही है आपकी? नहीं, सिलेंडर भी रखा हुआ है साथ में। आज तो वो खाना शाना एंड खा के तो वो कह रहे थे थोड़ी देर बाद हम पियेंगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर तक देख लूँ क्लास में क्या हो रहा है। सही सही जबरदस्त, ठीक है। बस इसी थैंक तरह यू। आपने अपने टास्क के लिए भी हर प्लान के लिए प्रिपेयर रहना है कि अगर एक चीज एक टाइम पे एक काम नहीं चला तो आप दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाए, दूसरा नहीं चल जी रहा तो तीसरा प्लान जो है उसको प्रिपेयर रखें, ठीक है। जी ताकि हम सबकी कोई भी फ्लो नहीं रुकना चाहिए। आपके टास्क आपकी ये ट्रेनिंग जो है इसको आप 100% भी कंप्लीट कर सके, ऑन टाइम कर लें ताकि हमारी चीजें बहुत स्मूथ रहे, ठीक है। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह आपका, इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैम मैंने गेम बनाई है जिसमें जो ना फनी रिडल्स पूछी हैं, तो वो ठीक है बच्चों के लिए? फनी फनी और खेलने की रिडल्स बिल्कुल भी हैं, सही है। साथ फन भी है। मैंने कहा ना ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कहेंगे वो बनाता जाएगा। बस आपने ये देखना है कि आपने अपनी इंस्ट्रक्शन सही फॉलो होते हुए देखनी है। नहीं हो रही तो उसको फिर प्रॉम्प्ट दें कि मैंने ये कहा था इसको इस तरह करके दो, मैंने इस तरह कहा था इस तरह करके दो। मतलब आपने मेरे पे रिलाई नहीं करना कि मरियम हमें प्रॉम्प्ट भेजती है हमने वही किया, हमने कुछ नया सीखा नहीं। भाई अब आपकी क्रिएटिविटी आपने खुद लानी है। मैंने आपको हर चीज बता दी कि आप किस तरह से चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से चीजें आपकी इम्प्रूव होती जाएंगी। अच्छा, ये जो हम फेसबुक और लिंक्डइन पर शेयर करते हैं, तो जब इसका हम लिंक जो है गूगल शीट पर लगाने लगते हैं तो जब हम इस पे इमेज करें तो वही लिंक आता है, मतलब सेम ही है ना? तो वो फिर एक ही लिंक हुआ, बस वो जो इसका वेबसाइट पे बन रहा है वही हमारी शीट पर आ जाएगा, बस वही हुआ फिर। जो आपने plot.ai से लिंक बनवाया है उसी हाँ लिंक को वही है। आपने लिंक्डइन के अंदर भी पोस्ट कर देना, उसी लिंक को आपने अपने फेसबुक वाले कॉलम में भी पोस्ट कर देना, ठीक है। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव 6 टास्क फॉर टुडे। आज के हमारे कुछ 6 टास्क हैं जो कि आपने कंप्लीट करने होंगे, जिसमें से एक आपका कोडिंग का टास्क है,
देन आपके पास टास्क है कि आपने रेहान के लिंक्डइन के 10 म्यूचुअल फंड्स को ऐड करना है, एंड देन आपने चैट जीपीटी के साथ टॉक करनी है, और चैट जीपीटी मस्ट है, उसके साथ तो बात करनी ही करनी है। उसके अलावा आपने बात करनी है अपने कॉम्प्लेक्सिटी, सेसमी, मैंने ये 2 आपको बता दिए थे, और साथ ही साथ आप यहाँ 2 कर सकते हैं कॉल एंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ और भी आपके साथ, अच्छा मैं एक और इन्फॉर्मेशन आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरे लिए वो हेल्पफुल नहीं हो रही है, और मैं बहुत परेशान हूँ कि कब मेरे लिए इनेबल होगी ये चीज और मैं ये कर सकूँ। अब 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं उसको शेयर करती हूँ आप सबके लिए। तो आप सब ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो सबके लिए इनेबल हो सकती है। जी, हैंड रेस था यहाँ पे किसी का, प्लीज किसी को कोई सवाल करना है तो माइक खोल के बता सकते मैम जी मिस वरिया, मेरा क्वेश्चन था। हैं। जी प्लीज बताइएगा, पहले आप मेरे एक सवाल का मदद के साथ जवाब दे दें। आपका क्लॉट जी चल जी रहा है? जी जी मिस, मेरा क्लॉट चल रहा है और मैंने कैलकुलेटर जो है वो कैलकुलेटर की ऐप बना ली है। तो मैं कह रही थी कि मैं डे बाय डे करूं, ऐसा ना हो कि एक दिन में 2 करूं तो मेरे साथ लिंक्डइन वाला हिसाब ना हो जाए। तो नहीं, मेरे जो ऐसा सैटरडे कि आप संडे अपने होगा उसमें मैं कंप्लीट तमाम कर लूंगी। जो है, जी ठीक है, वो आप अपने वीकेंड पे कंप्लीट कर सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, क्लॉड पे आप सारे टास्क बना के रखें, जैसे मैंने मिस रुपना को गाइड किया था कि आप क्लॉड के अंदर अपने टास्क कंप्लीट रखें। आप अपलोड जो है वो 2 आवर्स 3 आवर्स की ब्रेक के साथ करेंगे, एक साथ अपने सारे टास्क अपने कोडिंग के अपलोड नहीं करते। असल में ना मुझे ये मोबाइल से ना अभी कुछ चीजें जैसे मैंने पहले बनाया उसका मैंने लिंक कॉपी कर लिया। तो लिंक कॉपी करके मैंने उसको उसके डिस्क्रिप्शन लगा कर मैंने कर दिया, तो बाद में मैंने उसको चेकआउट किया तो वो तो अब एक ब्लैंक पेज था। तो दोबारा से फिर मैं आई, फिर मैंने उसको करके सेट करके दोबारा से जहां जहां मुझे समझ आई फिर किया, तो फिर लिंक कॉपी हुआ। तो मोबाइल पे ना चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, तो वो हम्म। उसकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी ना मुश्किल हो जाती है। तो मैं ना फिर जैसे जैसे करती जाऊंगी मैं उसको ना वैसे वैसे ही अपलोड करती जाऊंगी। मैं क्वेश्चन कर लूं? हम्म। ठीक है, मिस मेरा ओके। है ना चैट जीपीटी, पहले होता था 12 मिनट 15 मिनट की भी बात हो जाती थी चैट जीपीटी के साथ, लेकिन अब ऐसा होता है कि जब मैं बात करती हूँ ना तो 10 मिनट से अगो ना वो मेरे साथ बात नहीं करती चैट जीपीटी जो है। तो उसके बाद ना पता नहीं वो पता नहीं क्या बोलती है अचानक से, तो फिर बाद में मैं अकेली बोलती हूँ, वो नहीं बोलती। जब चैट जीपीटी का हम यूज कर रहे हैं ना आजकल, आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग। वो आपसे कहता है कि आप स्टैंडर्ड चैट पे आप शिफ्ट हो रहे हैं। आपने, आई डोंट नो कि हम वैसे तो प्रो वर्जन यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर भी आपको कहता है कि आपके जो स्टैंडर्ड चैट है वो खत्म हो गया, आप नॉर्मल चैट पे आ जाए। तो वो आप दोबारा से उसकी विंडो पे जाएं, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप स्टैंडर्ड चैट से नॉर्मल चैट पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप उसको ओके कर दें, और दोबारा से आप उससे बात करना शुरू करेंगे तो वो आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। ओके। जी इशाल ज़ारा, लैला, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। आजम भाई अपना कैमरा ऑन कर लें। मैम ये जब हमने क्विज बना लिया इसके सारे क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करेंगे? कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आपने ये भी तो चेक करना है कि अगर वो गलत आंसर, मैं फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते थे जब मैं ये आपके वाली सारी एप्स बना रही थी, तो मैं इंटेंशनली गलत करके देखती थी कि क्या वो खुद से राइट आंसर को क्लिक करके देता है, क्या वो हाईलाइट करता है कि ये राइट आंसर ये वाले कलर में है, और जो आपका आंसर है जब आप उसको राइट को क्लिक करते हैं तो आपको उसको ग्रीन कर दे, या आपको बताए कि ये राइट आंसर था, या आपने गलत ऐड किया तो वो फिर बताए कि नहीं नहीं राइट आंसर ये था, इसको हाईलाइट करना था, आपने गलत आंसर। तो ये भी क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है। ताकि अगर आप पब्लिकली पोस्ट कर रहे हो ना, अगर मैं जाके इशार के उस वाले क्विज को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं देखूं कि इशार का तो क्विज काम ही नहीं करता, फिर क्रिटिसिज्म तो बहुत ज्यादा आता है ना हमें, ठीक है। ये चीजें हमें थोड़ी देख के करनी पड़ती है। सलेमान भाई थम्स अप बाद में करें, आप मुझे कैमरा पे नजर नहीं आ रहे। कैन यू सेंड मी द डायरी इन द ग्रुप? जी बिल्कुल, मेरा मैंने डायरी आपकी भेज दी ग्रुप के अंदर। चल बहुत शुक्रिया। राहत मैम, आप भी हमें क्लास में काउंसलिंग किया करें ताकि हम आपसे भी कुछ सीख सकें, क्योंकि हम पेरेंट्स भी हैं अपने बच्चों के।
जी बिल्कुल ठीक है। रात आप प्लीज 10 मिनट जो है वो पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर काउंसलिंग दें, ताकि सबको पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ में आना शुरू हो। ये अच्छा जी, कोडिंग का टास्क कंप्लीट हो रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करनी है आज की, वो मैं आपको कुछ नई चीजें गाइड कर दूं और मैम बता हो दूं। गया है, पोस्ट कर दिए दोनों के ऊपर। पहले आप मुझे ये बताओ, आप नजर क्यों नहीं आ रहे? मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं? अब आप मिस्टर जिंदा से मिस्टर सुलेमान बन गए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब कैमरा एंगल सेट कर ले मेरे भाई। हाँ जी, अब आप क्या कह रहे थे, अब आप बताइए। अच्छा जी। ओके पार्टिसिपेंट्स, जेमिनाई, आई होप कि आप सब टीचर्स हैं, तो आप लोग जेमिनाई को बहुत अच्छे से अब यूज कर रहे होंगे। स्पेशली आप लोगों ने अब वापस जाना है अपने स्कूल लाइफ में, जहाँ पे आपने अपनी टीचिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और अब कोशिश कीजिएगा जो चीजें यहाँ सीखी हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी क्लासेस को इनिशिएट कीजिएगा, बच्चों को वेलकम कीजिएगा। दो कि ये बहुत मुश्किल काम है, आसिफ अली भाई, बहुत छोटे बच्चों को टैकल करना, लेकिन आप हिम्मत रखें और अपना हौसला बढ़ा रखें, इंशाल्लाह बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। और रीता पियर्सन बन के जाइएगा, और अगर आप में से किसी की मोटिवेशन थोड़ी लो होने लगे तो रीता पियर्सन को फॉलो कर ले और उनकी डिफरेंट वीडियोस को देख ले। अभी कल ही मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी रीता पियर्सन की, जो कि वो बता रही थी कि बच्चों के साथ आर्गुमेंटेड नहीं हो टीचर्स। आपने बच्चों को बतानी है कोई भी चीज, उसके दो तरीके हैं। आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से बात कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है और कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी हैं। तो वो पूरी एक एग्जाम्पल के साथ उसने वो चीजें शेयर की है। सो पर्सनली मुझे रीता पियर्सन मिस बहुत पसंद है, और आई विश के कभी जिंदगी में चांस मिल सकता है तो मैं उनसे मिल लेती। पता नहीं अब वो दुनिया में है भी कि नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुरानी है मोहतरमा। अब जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की, वो है जेमिनाई के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप सब जेमिनाई को यूज कर रहे होंगे, और अभी हम करेंगे भी। जब हम अपने बच्चों के होमवर्क चेक करेंगे, उनकी डायरीज चेक करेंगे, कॉपीज चेक करने की बारी आएगी, या हमने अगर किसी अपने फॉर एग्जाम्पल के कोई जो है वो कोऑर्डिनेटर है और अपने टीचर्स की चीजों को एवेलुएट करना है और उनको गाइडलाइंस देनी है कि वो किस तरह से मजीद इंप्रूव कर सके। समटाइम ऐसा भी होता है मिस लुबना की तरह कि उनको ये भी समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा मेरी टीचर की इतनी सारी गलतियां, मैं टीचर को क्या बताऊंगी किस तरह से चीजें करनी है। तो हमें अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। आप हर किसी को हर बात नहीं स्ट्रेटली कह सकते। आपको ये भी सीखना है कि भाई इमोशनली बैलेंस्ड रह के मैंने किस तरह से चीजों को डिलीवर करना है, ताकि मेरी बात भी कन्वे हो जाए और सामने वाला हर्ट भी फील ना करे। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी जब आप अपने सेशंस करना शुरू करें, देखिए एआई के साथ हमने रोज बात करनी है। तो अगर आप एआई को यूज करते हुए 10 मिनट अपने लिए निकालें और अपने डे टू डे चैलेंजेस एआई के साथ शेयर करना शुरू कर दें, तो आपको बहुत अच्छी सजेशन देना शुरू कर देगा। जिसमें कि अक्सर मेरे प्रिंसिपल, मेरे मेंटोर दौलत साहब मुझे हमेशा कहते होते हैं कि ये जितनी साइकोलॉजी एआई से सीखती है उतनी साइकोलॉजी आके बच्चों पे अप्लाई करती रहती है। तो इट मीन्स कि मुझे अपने जितने भी चैलेंजेस आते थे मैंने उनको एआई के थ्रू ही सॉल्व किया, और मैंने एआई के थ्रू ही उनके सोल्यूशन जो है वो ढूंढने शुरू कर लिए। तो आप सबके पास भी ये बहुत अच्छी जो है वो चिराग आपके हाथ लग गया है अलादीन का। तो उसको यूज कीजिए, जितना ज्यादा इफेक्टिवली यूज करेंगे उतना ज्यादा वो आपको सीखता जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यू चीज के बारे में, जो कि जेमिनाई के बारे में है। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। एक मिनट हो गया। जेमिनाई पे एक नया फीचर इनेबल हो गया है, और जेमिनाई अब आपको
फ्री में अपना प्रो वर्जन का 1 महीने का ट्रेलर दे रहा है। तो आप में से जो जो उसको अवेल कर सकते हैं प्लीज गो फॉर इट, और मैं तो कहूंगी सब कीजिएगा और सभी इसको एंजॉय कीजिएगा। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर करने को है। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने बताया कि मेरा इनेबल नहीं हो रहा, मेरी कोशिश थी कि मेरा हो जाए तो मैं आपको बहुत सारी चीजें मजीद गाइड कर सकूं, लेकिन मेरा नहीं हो रहा। तो मैं चाह रही हूँ कि आप सब में से जिसका हो सकता है वो जल्द से जल्द उसको कर ले। आप जेमिनी पे आएंगे, जैसे ही हम जेमिनी पे आते हैं तो राइट साइड पे ना आपको लिखा हुआ मिलेगा अपग्रेड योर प्लान, ठीक है। जैसे आपकी पिक्चर लगी हुई है ना, यहाँ पे ये आपका नेम का फर्स्ट लेटर लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा अपग्रेड योर प्लान। याद है जब हमने पहली बार जेमिनी को यूज किया था तो ये पिंक था, ये व्हाइट या ब्लैक में नहीं था। अभी तो ये मेरी स्क्रीन ब्लैक है ना, तो इसलिए ब्लैक है। तो ये जेमिनी नॉर्मली पिंक आता था, अब जो है जेमिनी अपग्रेड हो गया, इसलिए ये अब जो है वो व्हाइट कलर में शो होता है। और जेमिनी पहले बिल्कुल बॉटम पे ये वाला इसका मैसेज का ऑप्शन था, अब ये बिल्कुल मिडल में आ गया जैसे कि चैट जीपीटी में आता है। मैं यही याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको कि ग्रेजुअली एंड स्लोली हर एआई टूल जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। अभी तक जो है इसके अंदर जो है वो वर्बली चैट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे लैपटॉप पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप 101 कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं तो सेल फोन के अंदर जेमिनी आपके साथ 101 कॉन्वर्सेशन भी करता है। तो आप सेल फोन में जेमिनी की ऐप को इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं, सिमिलर लाइक चैट जीपीटी, और जिससे चैट जीपीटी से बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जेमिनी में ये भी अपग्रेडेशन होगी कि ये जो राइट, बिल्ड, रिसर्च और क्रिएट इमेज के ऑप्शन थे ये पहले नहीं थे, ये अब ये भी सेपरेटली उसने दे दिए हैं कि आपको जो करना है आप इनमें से पहले उसको उस स्पेसिफिक जो आपके टास्क है परफॉर्म करने के लिए उस एक चीज को पहले सेलेक्ट कर लें, ताकि जेमिनी उस तरह से एक्ट करना शुरू कर दे और उसको पता होगा कि उसने क्या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रॉम्प्ट दें या अपनी इंस्ट्रक्शन दें तो वो आपके साथ शेयर कर देगा। इसके साथ ही साथ यहाँ लेफ्ट साइड में आए तो ये जेमिनी के नीचे जो लिखा हुआ है ना 2.5 फ्लैश फ्लैश का वर्जन जो है ये इसका फ्री वर्जन है जो मैं यूज कर रही हूँ और आप सब भी ये यूज कर रहे हैं। जब हम प्रो में वर्जन अगर कोई लेना चाहेगा और ले लेगा तो उसको मिल जाएगी यहाँ पे रीजनिंग, मैथ एंड कोडिंग। पहले ये जेमिनी में नहीं था, जेमिनी मैथ भी नहीं अच्छा करके देता था, कोडिंग के बारे में कुछ नहीं देता था। अब जेमिनी अपग्रेड हो गया और आपको प्रो वर्जन में वो कोडिंग भी बहुत अच्छी करके देगा, ठीक है। जैसे कि हम क्लॉड से करा रहे हैं ना जिस तरह की चीजें, इस तरह से आप जेमिनी से भी करा सकते हैं, ठीक है। और आप अपने प्लान को अगर अपग्रेड कर देते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग जो है वो चीजें बहुत अच्छी मिल जाएंगी। अब जब हम अपग्रेड प्लान की बात कर रहे हैं, अपग्रेड प्लान में क्या है कि अपग्रेड प्लान में जब आप क्लिक करते हैं तो जेमिनी आपको दे रहा है 1 मंथ फ्री की प्रो सब्सक्रिप्शन। जैसे अभी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा गया गेट जेमिनी प्रो एंड मोर विद गूगल एआई प्लान। अब इसमें मोर में क्या कुछ है, मोर में इतनी अच्छी चीजें हैं। अब सबसे पहले वो आपको दे रहा है मोर एक्सेस टू आवर मोस्ट केपेबल मॉडल्स, क्रिएट हाई क्वालिटी वीडियो क्लिप्स विद लिमिटेड एक्सेस टू VEO3। ये VEO3 जेमिनी के साथ एसोसिएटेड है, ये एक एआई टूल है जो कि वीडियोस को जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू योर गिवन प्रॉम्प्ट। जैसा आप प्रॉम्प्ट देंगे, जितना डिटेल प्रॉम्प्ट देंगे उतनी अच्छी वीडियो आपको VEO3 बना के देगा, ठीक है। और ये वीडियो 8 सेकंड की होगी, आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाइएगा, फ्री में इतना ही मिलता है। जब आप पैसे दे के लेंगे तो आपको ज्यादा भी मिल जाएगा। फ्री में वो 8 सेकंड की वीडियो बना के दे रहा है अभी, और अगर लेटर ऑन में भी वो आपको 1 मिनट की 30 सेकंड की वीडियो भी बना दी, लेकिन अभी 8 सेकंड की। अनलॉक एक्सेस टू प्रीमियम फीचर्स इंक्लूडिंग डीप रिसर्च, अंडरस्टैंड लार्ज बुक्स एंड रिपोर्ट्स विद 1500 पेजेस ऑफ फाइल अपलोड्स, ठीक है। कि अब पहले जो है वो बहुत लिमिटेड पेजेस के साथ, ये वर्ड्स के साथ आपकी जो है वो बुक्स जो थी उनको स्किम एंड स्कैन करके दे देता था। अब उसने कहा है कि जितनी बड़ी बुक होगी, अगर वो 1500 पेजेस की भी बुक है तो भी उसको बहुत अच्छे से जो है उसकी रिपोर्ट बना के दे देगा आपको। एक्सपीरियंस और मोस्ट केपेबल एआई टूल्स, ये वो आप कहना चाह रहे हैं कि आप ग्रेजुएट स्टोरी इसको यूज करेंगे तब के लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। देन इसके अंदर और क्या कुछ इंक्लूड होगा, ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस गूगल वन सब्सक्रिप्शन फ्लो। अब ये फ्लो क्या है, ये VEO3 के साथ एसोसिएटेड है। उसमें फिल्म मेकिंग हो जाती है, जो कि एक आपने 8 सेकंड का वीडियो बनाया ना, उसको सिनेमैटिक वीडियो सीन्स बनाने के लिए या स्टोरीज बनाने के लिए या 2 से 4 वीडियोस को मर्ज करने के लिए आप यूज करेंगे वो फ्लो आपको, या इसी के अंदर रहते हुए यूज करेंगे। उसके बाद हिस्ट है विद हायर लिमिट्स टू इमेज टू वीडियो क्रिएशन विद VEO2। अब जो VEO3 से थोड़ा लेस वर्जन है वो भी आपको इसके अंदर मिल रहा है, लेकिन 1 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन में। नोटबुक LM, ये जो नोटबुक LM है ना,
ये इतना अच्छा है कि आप कोई भी लिंक इसको दे दें, ये आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर देता है। हमारे रहमत एम्पावरमेंट वाला जो मेरे मेंटर है, मेरे सर है और मेरे अब कुलीग भी हैं, वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वो बहुत प्रेफर करते हैं। वो अपने बच्चों को भी गाइड करते हैं कि अगर आपको किसी टेड टॉक को समझने में मुश्किल आ रही है, वेदर द टेड टॉक इज इन इंग्लिश और उर्दू, मतलब हमारी जो रात की शिफ्ट के बच्चे हैं वो ओवरसीज हैं, मतलब फॉरेनर ज्यादा है, पाकिस्तानी कम है, तो उनको समटाइम अगर उर्दू में मसला आता है समझने में, तो वो कहते हैं कि आप नोटबुक एलम पे जाके इसका लिंक पेस्ट कर दो और वहां से सीख सकते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे से इसके सारे नोट्स और की पॉइंट्स भी शेयर कर देगा। और वो लिंक जो कि जेमिनी नहीं पढ़ता, वो आपके नोटबुक पढ़ सकता है। ठीक है, ये भी इसके अंदर आपको फ्री में असिस्टेंट उसकी मिल जाएगी। जेमिनी, जीमेल, डॉक्स, वेट एंड वेट वीडियोस एंड मोर आपको फ्री में मिल जाएगा। 2 TB ऑफ टोटल स्टोरेज मिलेगी और अदर प्रीमियम बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, अब ये सारी बेनिफिट्स तो मिलेंगे कैसे? गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे और अब आपसे ये पूछेगा कि भाई आपने ऐड अर्न करना है अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड। ट्रस्ट मी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप इसके साथ अपना डेबिट कार्ड एसोसिएट कर देते हैं, वो आपको खुद बता रहा है। अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा आ रहा है ना मेरी ईमेल के नीचे, एड अ पेमेंट मेथड टू योर गूगल अकाउंट टू स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, यू वोंट बी चार्ज इफ यू कैंसिल बिफोर अगस्त 31 2025। आज 31 जुलाई को अगर मैं इसकी सब्सक्रिप्शन ऑन करती हूँ, तो 31 अगस्त से पहले पहले एक दिन पहले 30th और 29th को मुझे अनसब्सक्राइब करना है और इसके बाद मेरे अकाउंट से कोई पैसा नहीं डिडक्ट होगा। और इससे पहले भी 1 महीने के अंदर एक सिंगल पैनी भी वो डिडक्ट नहीं करेंगे और आपको फ्री में प्रो वर्जन दे देंगे। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भूल जाता है, ठीक है, कि मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन को ऑफ करना था, तो उसके लिए मसला हो सकता है। लेकिन अब उसका सेकंड में क्या है, यूज तो हम सबको करना चाहिए और हम सबको करना भी है, ताकि हम इस BOT फ्लो वाले और इतने सारे अमेजिंग टूल्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें। अब उसका अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप किसी चीज को बनाते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि टू डू लिस्ट जो होती है ना, जो ऐप होती है, वो आपको रिमाइंडर्स देती है। तो अगर आप उसके अंदर एक रिमाइंडर सेट कर लेंगे अपने लिए कि मुझे 28 अगस्त को रिमाइंडर भेज दो कि मैंने अपनी जेमिनी की सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्राइब करनी है, तो 28 अगस्त का वो सब आपके लिए वो अलाइन कर देगा रिमाइंडर, और 28 अगस्त को आपको दोबारा से वो याद दिला देगा। ठीक है, अदरवाइज आपके मोबाइल के अंदर एक अलार्म की ऑप्शन होती है, अलार्म क्लॉक की, उस अलार्म क्लॉक को आप सेट कर सकते हैं 28 अगस्त पे डेट के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको रिमाइंडर ऐप मैसेज दे देगा कि आज आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाली है, तो उसको आपने जाके अनसब्सक्राइब कर देना इससे पहले कि आपके अकाउंट से कोई पैसे कट जाए। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए कहा है, हम सब इसको यूज कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि अगर आप सब भी इसको यूज करेंगे तो आप सबको भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और प्रीमियम वर्जन तो वैसे भी अच्छी चीज होती है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए फ्री में जो है वो हिंडर होती हैं, हम नहीं कर सकते। तो जब 1 महीने का वो फ्री में प्रीमियम दे रहे हैं, तो उसको यूज करके देख लें, अच्छे मजे लें, एंजॉय करें, और फिर 1 महीने से पहले पहले उसको अनसब्सक्राइब कर दें। अनसब्सक्राइब करने का भी सेम मेथड है कि आपने अपनी ईमेल पे जाना है, वहां पे क्लिक करेंगे, वो जो छोटी सी पिक्चर आती है वहीं पे क्लिक करके वहां पे आपको नीचे जाके सेटिंग में ऑप्शन मिल जाएगा अनसब्सक्राइब करने का, वहां से आप उसको कैंसिलेशन पे क्लिक करके उसको कैंसिल कर सकते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आप प्लीज इसको यूज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ना मोबाइल वाला नहीं हो सकता, मैंने मोबाइल से करने की कोशिश की थी, नहीं हो रहा मोबाइल वाला, कि आप अपनी जो सिम कार्ड्स है उसके साथ इसको एसोसिएट करके इसको कर ले। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो हमारे नेटवर्क्स हैं, आई एम यूजिंग जैज एंड टेलीनॉर, और वो दोनों नहीं चल रहे। मुझे नहीं पता कि बाकी कोई चलता है कि नहीं चलता, लेकिन इन दोनों का कोई नहीं मसला। लेकिन अगर आप बैंक का आपके अकाउंट्स हैं सबके, तो बैंक अकाउंट्स में आपके पास 3 तरह के कार्ड्स की उन्होंने वो लिमिटेशन दी हुई है, उन कार्ड में देख लें आपके पास कौन सा ATM कार्ड है, उसको अप्लाई कीजिए और इसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, और फिर कल मुझे बताइएगा कि क्या मसला आता है, कुछ चैलेंज आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। जी आसिफ भाई, आपका हैंड रेज है। सलेमान भाई प्लीज कैमरा सेट कर लो अपना। मैम मंथ एंड पे हम सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें, फिर अगले मंथ फिर लगा दें सब्सक्रिप्शन, फिर भी फ्री मिलेगा अगले मंथ? अब ये तो मुझे नहीं पता, मैंने बोला ना कि मेरे लिए तो ये सब्सक्रिप्शन ऑन ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेरा ATM कार्ड है वो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल नहीं कर रहा, और जो मेरे नेटवर्क है मोबाइल के वो तो वैसे ही फुलफिल नहीं कर रहे। तो मुझे ये नहीं पता कि 1 महीने के बाद अगर हम दोबारा दूसरे महीने के लिए अप्लाई करते तो क्या दूसरी बार हमें वो अलाउ करता है या नहीं।
ये मुझे नहीं पता। अच्छा मैं एक चीज बता दूं आसिफ भाई, अगर हम अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं, जैसे हमारा जीमेल उसके साथ एसोसिएटेड है, हमारी बैंक डिटेल उसके साथ एसोसिएटेड हो जाती है, तो मुझे ये मेरी एक अजम्पशन है, अब मे बी 1 महीने के बाद मैं आपके साथ सही वाली बात शेयर कर सकूं। अजम्पशन ये है कि अगर हमने एक ईमेल से उसको लॉग इन कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता उस ईमेल पे दोबारा आप अगले महीने फिर फ्री ट्रायल के लिए अप्लाई कर सकते। सिमिलर मैनर में अगर आपने एक बैंक डिटेल दे दी है, तो वो उसी बैंक डिटेल पे दोबारा फ्री नहीं अलाउ करेगा, वो कहेगा आप पे करो। तो इसके दूसरा भी तरीका ये है कि आप एक और ईमेल बना लें, आप एक और एटीएम कार्ड उसके साथ ऐड कर दें, तो वो जो नया ईमेल और नई आपकी चीजें होंगी उसके साथ आपको फिर 1 महीना फ्री मिल सकता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने इस तरह से चैट जीपीटी को बहुत बार धोखा दिया है। मैंने फिर 5 ईमेल बनाए हुए हैं। अब मैं चैट जीपीटी को एक टाइम में, अगर वो मुझे एक ईमेल से कहता है कि अब लिमिट खत्म होगी, तो मैं उसको बंद करके दूसरी ईमेल लगा लेती हूँ कि चलो भाई अगर तुमने इससे बंद करनी है तो इससे तो नहीं होगी। अगर फिर उसको भी बंद कर देते तो मैं तीसरी ईमेल लगा लेती हूँ। इस तरह से आप अगर और मैं ये सबको कहती भी हूँ कि कोशिश करें कम से कम 3 ईमेल लाजमी अपनी बना के रखें, अगर आपने एआई टूल के फ्री में ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो एक ईमेल से अगर वो ब्लॉक करता है कि अच्छा आपकी लिमिट पूरी होगी, तो दूसरी ईमेल से ऑन कर ले। तो मेरी 2 ईमेल जो है एट अ टाइम चैट जीपीटी पे लगी हुई है, एक से बंद करता है तो दूसरे पे आ जाती हूँ, दूसरे को करता है तो पहले पे स्विच कर ले। फिर 15-20 तो इस तरह एटीएम से कार्ड कलेक्ट करने होंगे। क्या 15-20 मिनट 15-20 एटीएम कार्ड कलेक्ट करने होंगे, जैसे स्कैमर करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप इतने ज्यादा अकाउंट बनवा ले। आप अगर 2 भी आपके पास हो रहेंगे ना, तो भी आप 2 महीने तो एंजॉय करेंगे। लेकिन अब देखें वो कब तक आपको फ्री देगा। अब अगर वो गूगल ही उसको खत्म कर दे कि अब भाई बस 1 महीना हमने सबको मजे देने थे फ्री के, वो हमने दे दिए, अब हम नहीं दे, तो फिर आप चाहे 15 भी बना ले तो वो नहीं देगा। लेकिन ये है कि हम जैसे पाकिस्तानी कौम बहुत जुगाड़ू है, तो ये उसका दूसरा जुगाड़ जो मैंने आपको बताया, ये हो सकता है कि वैलिड हो जाए। ऐसे बैंक में रोज शिकायत लेके आ जाते थे, आज हमारा कार्ड एक्सचेंज हो गया, आज किसी ने पासवर्ड देख के हमारा कार्ड चेंज कर दिया। हाँ, फिर ये वाले मसले में तो मुझे नहीं पता हुआ कि क्या क्या करूँ। ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके पार्टिसिपेंट्स, आई होप कि आपका कोडिंग का टास्क कंप्लीट हो गया होगा, और जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन शेयर किया प्लीज इसको अप्लाई करके देखिएगा। मैम वो भी बहुत सियाने हैं, वाकई जी वो बहुत सियाने हैं, वो हमसे भी ज्यादा आगे हैं। ठीक है, ओनली वन प्लेटिनम कार्ड। जावेद भाई प्लेटिनम कार्ड तो आई थिंक तो एक्सेप्टेबल होगा। मतलब उन्होंने ना 3 शर्तें रखी हुई है, वीजा कार्ड होना चाहिए, मास्टर कार्ड होना चाहिए, और एक जो है ना उसके मुझे वो साइन नहीं समझ में आया, उस पे 2 ब्लू कलर के ना सर्कल्स बने हुए हैं, और उस कार्ड का मुझे नहीं पता ये कौन सा कार्ड होता है, तो वो मैम वाला कार्ड। मैम प्लेटिनम कार्ड जो है इंटरनेशनल कार्ड है मेरे पास, मैंने अभी अप्लाई किया, मेरे पास हो गया है, तो वो इंटरनेशनल है, उससे कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। क्या बात है भाई, जावेद भाई तो बहुत ही प्रो निकले, उन्होंने गोल्ड अपना प्रो कार्ड भी से ऑन। भी हो जाता है, गोल्ड कार्ड। मैम अभी आप यहाँ से ना मुझे वहाँ पेमेंट करनी थी बाहर, तो फॉरेन फलस्तीन, तो कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने फिर इंटरनेशनल पेमेंट करवा के तो मैंने कर दिया, वो हो गई है वहाँ पे। जबरदस्त जबरदस्त, चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और आपकी पेमेंट को कबूल करे। कभी कभी अच्छा, किसी आप एटीएम सब कार्ड जो है, से जी जी आसिफ भाई। कभी कभी किसी एटीएम कार्ड से फॉरेन पेमेंट नहीं होती ना, उसका सेशन जो है वो एक्टिवेट कराना पड़ता है। या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में जो बैंक एप्लीकेशन है उसमें ऑप्शन होता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो आप अलो करें, या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, तब जो हमारी सही। पेमेंट होती है। वो डिफरेंट है ना, वो इंडिया में रहते हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसीज होंगी, वो डिफरेंट चीजें होंगी। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके लिए डिफरेंट चीजें और डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, जी जी तो ये कंट्री टू कंट्री हर चीज वेरी करती है। ठीक है, जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप सब इसको ट्राई करने के बाद कल जरूर शेयर कीजिएगा कि किसी ने BEO3 को ज्वाइन किया, अप्लाई किया, करके देखा कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये अटेंडेंस लिंक प्लीज, ये आसिफ भाई अपने अटेंडेंस का लिंक भेजा था, दोबारा भेजिएगा, ताकि ये जो हमारे शफीक भाई है वो भी अटेंडेंस लगा ले, और कोई और पार्टिसिपेंट रहता है तो वो भी अटेंडेंस। ठीक है जी, मिस सिरम प्लीज आप बोल रहे हैं जी, बोल। ये मैंने थोड़े दिनों पहले सर रेहान की ना एक छोटी सी पोस्ट देखी थी, उसमें उन्होंने ये बयान किया था कि इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान से जीत गया है। तो कैसे जीत गया कि इंडिया की जो सिम है ना, ये जो वोडाफोन और इस तरह इन सबके जो नाम वो बोल रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि इन सिमों ने ना 1 साल के लिए ना जेमिनाई का प्रो वर्जन ना पूरे इंडिया को सिम के जरिए वैसे ही फ्री दे दिया।
तो ये जो जावेद भाई है ना मेरे ख्याल ये उसमें ये कर रहे हैं। और जो सलमान आप शेयर कर रहे थे ना, वो इंडियन सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि जेमिनी का वर्जन वैसे ही फ्री है, उनको एक्टिव करने का तरीका बता रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन इंडिया की जो फोन की कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी, उन्होंने वैसे ही सारा ना लोगों के लिए ओपनली फ्री कर दिया है। ये इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, ये कह रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया मिस इरम। और ऐसा है भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो इंडियंस के लिए आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अल्लाह करे आप लोगों में से कोई अगला एलोन मस्क हो, कोई अगला हमारी पाकिस्तान के लिए फॉर्मूला कार बना ले, हम भी कह सके कि पाकिस्तान में भी एआई बहुत सस्ती हो गई है। ठीक है, और हम सब भी इसको एंजॉय करें आपके तौसुत से। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं। रिहान स्कूल कोचिंग क्लब, अपने कैमरा ऑन कर ले प्लीज और अपना माइक अनम्यूट कर ले। मिस जवेरिया, आप 2 डिवाइस से लॉग इन है, ज्यादा सीखना है क्या? वहां मैंने बच्चे से कह दिया था कि लैपटॉप ऑन करके रखो, तो बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं लैपटॉप से ही आ रही हूँ। चलें ठीक है, ओके जी। ये राहुल भाई है, अच्छा जी, ठीक हो गया। राहुल भाई, आप इतनी देर क्यों लगाई आपने कैमरा ऑन करने में, ये बता दे मुझे। मैं अभी सेटिंग कर रहा था इसकी लैपटॉप। ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा पारिसमेंट, मैंने आपके साथ जो है लास्ट टाइम शेयर किया था कि आप जो है वो किस तरह से अपनी जो नॉर्मली आप बनाते हैं अपनी फेसलेस वीडियो, उसको चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री में। तो आप सब डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करने वाले थे। अच्छा, उसमें एक ग्लिच आ रहा था जो कि मिस गुलशान और मिस लुबना ही दोबारा एक्सपीरियंस कर रही थी कि जी हमारा जो है वो 11 लैब्स नहीं चल रहा। तो वो 11 लैब्स का मुझे बताइएगा कि अभी दोबारा आप दोनों में से किसी का फंक्शन हुआ या नहीं हुआ। नो मैम, नहीं बस हुआ। मैंने तो दोबारा ट्राई नहीं किया। मैंने मैंने किया सुनो था, AI नहीं हुआ। पे बना लिया था गाना, तो हाँ। उसके बाद मेरा लैपटॉप का इशू हो गया, तो मैंने तो उसको ट्राई नहीं किया। सॉन्ग नंबर 9 जो है वो उस पर बना लिया था, सॉन्ग नंबर 10 जो वो मेरा अभी पेंडिंग में है, तो मैंने नहीं ट्राई किया दोबारा। सही हो गया जी। मिस लुबना, मिस मेरा नहीं हुआ था वो डन, तो फिर मैंने suno.ai पे ही सॉन्ग बना लिया था। बाकी जो आज का टास्क है वो तो एआई से रिलेटेड है, तो आई थिंक वो डॉक्यूमेंट्री में ही ज्यादा सूट करेगा। उसका फिर सही क्या हो, ठीक हो, ठीक हो गया। ओके पार्टिसिपेंट्स, वी हैव जॉइंड बाय अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब वापस आ चुके हैं अपने इस्लामाबाद में। ये सकरदू में थे, शुक्र है खैर वापस से पहुंचे। अब्दुर्रहमान अपना कैमरा ऑन कर दें, माइक अनम्यूट कर दें। आज हम कुछ नई चीजें सीखेंगे वीडियो एडिटिंग के हवाले से ही, ताकि हम जो है आहिस्ता आहिस्ता वीडियो एडिटिंग को बेहतर करते जाए, जैसे कि मैंने कल भी आपसे शेयर किया था। तो अब हम कुछ और चीजें थोड़ी एडवांस में सीखते हैं कि किस तरह से वीडियो को और मजीद बेहतर किया जा सकता है। जी अब्दुर्रहमान, अच्छा एक चीज मैं आप सबको शेयर कर दूं, आप लोग प्लीज अपने थंबनेल्स बनाना शुरू करें। आप अपने जो रिव्यूज अपलोड करते हैं ना, उन रिव्यूज के लिए थंबनेल लाजमी बना के अपलोड करें। रिव्यू सुनने से पहले आपका थंबनेल वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपका रिव्यू कोई नहीं भी सुना चाह रहा है, थंबनेल पढ़ने के लिए चले 1 मिनट के लिए रुक जाए। जब वो 1 मिनट के लिए भी रुकेगा ना, तो आपका व्यूअर टाइम बढ़ जाएगा। तो अगली बार वो लाजमी जाएगा कि नहीं, अब मैं सुन भी लूं इस वीडियो के पीछे है क्या और कहती कौन है, ठीक है, या कौन कुछ कह रहा है, तो वो आपकी वीडियो को जरूर फिर सुनेगा भी। चाहे 1 मिनट के लिए सिर्फ आपका सलाम ही सुन ले, लेकिन वो सुनेगा जरूर। और अगर आप थंबनेल नहीं बनाते ना, तो डायरेक्ट वीडियो को कोई भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करता, वो कोई नहीं देखता। अच्छा ठीक है बोल ही रही है ना, अच्छा ठीक है बोल ही रहा है ना, तो क्या है? जब तक हम, और थंबनेल क्या काम करता है, थंबनेल आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर देता है। थंबनेल आपके टॉपिक को आपके एक्सप्लेन करने से पहले अनाउंस कर देता है कि इस पे बात किस चीज पे होगी। तो इसलिए थंबनेल बनाने की हैबिट जरूर बनाइए और थंबनेल जरूर ऐड कीजिए। जी शाहजादा। मैम ये कैनवा में फिर से इशू आ गया है। अब जी कैनवा जो आप लोग सब यूज कर रहे हैं वो है नसीमुल्लाह भाई का, और नसीमुल्लाह भाई के जो कैनवा है उसमें प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि मैंने बात की है, जैसे ही कुछ रिकवरी होती है तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर। मैम अगर ठीक है, इसको पेड वर्जन करना हो फिर आपके पास पेड वर्जन है जो कि फ्री में मिला हुआ है शायद, आप नहीं पैसे तो देने मैम हैं। लाइक, हाँ फिर रोज कोई इशू, कोई ना कोई इशू, फिर सॉन्ग बनाने में तो मसला होता है। आज भी बहुत ज्यादा मसला हो रहा था। अच्छा किस चीज में मसला हो रहा था?
मैम लाइक सॉन्ग बना रही थी ना आज मैं, तो वो जो मैं चाह रही थी मुझे ये वाली वीडियो इस तरह की एडिट करनी है, तो वो सब था कि आपको इसको पेड वर्जन में नहीं है, मतलब पेड करेंगे तो मिलेगा, इसलिए हाँ, बहुत अच्छा मसला हो रहा अच्छा, था। ठीक ठीक, यस। सही। अभी तक वैसे पर्सनली मैं किसी ऐसे वेंडर को नहीं जानती जिसको आप पे करके खरीदें, क्योंकि मैंने जब ये सिस्टम ज्वाइन किया था और मैंने खरीदा था, तो मुझे ना रहमत एम्पावरमेंट वाला सर ने ही रिकमेंड किया था कि आप इनसे खरीदें। मैंने उनसे खरीद लिया, पेमेंट कर दी, और 1 महीने के बाद ही वो कैनवा एक्सपायर हो गया, और उन भाई साहब ने दोबारा मुड़ के मेरी बात भी नहीं सुनी और दोबारा उसको इनेबल भी नहीं किया। इसलिए जहां पे पैसे देने की बात होती है ना, तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखा करो। पाकिस्तान में इतनी चीजें ट्रस्टेबल नहीं है पैसों के बारे में। फ्री वाली चीजों को एंजॉय करना शुरू करो। और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि आप फलां को पैसे देके ये ले लो, फलां को पैसे देके ये ले लो। जब फ्री में काम चलता है तो उसको फ्री में चले, ठीक है। और अगर नसीमुल्लाह भाई आपसे कह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर ले, तो चीजें बेहतर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आप पे कर लेते हो ना, तो सामने वाला कितना ट्रस्ट वर्दी है वो मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती कि आप उन साहब से खरीदिए, ठीक है। जी अब्दुलरहमान, ओवर टू यू। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आवाज नहीं आ रही, वहीं छोड़ा ऐसे कर दूं मैं? नहीं मैंने तो कहा फिर मैं कर चाल लगा के बोलो, अब तो ज्यादा आवाज आनी चाहिए। घूम फिर के आए हो, ज्यादा एनर्जी के साथ वापस आता है बंदा। नहीं नहीं मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर, रुके। जी प्लीज। स्क्रीन शेयर है। अच्छा स्क्रीन शेयर है ना। जी जी, शेड है, हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन। पता खोल लेते हैं। अच्छा मुझे याद नहीं है कि हमने लास्ट टाइम कितना काम किया है, तो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक सीखा था कि एक ही कैनवस के अंदर 4 से डिफरेंट पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं। आज हमने सीखना है कि 4 डिफरेंट वीडियोस कैसे ऐड करेंगे। मैम नीड अ हम्म, ब्रेक गेस्ट। ओके जी, ठीक है आजम भाई, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा अगर हमें वीडियोस ऐड करनी है तो सिंपल सेम तरीका है, और एलिमेंट्स में आएंगे। आपके पास एलिमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें आए, यहाँ सिंपल सर्च एलिमेंट में लिख दें। मैं पाकिस्तान लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। आ, जैसे लिखेंगे तो वीडियोस का ऑल के बाद दूसरा ऑप्शन वीडियोस का होता है, तो आप इस पे क्लिक करें और यहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अब जिस तरीके से ये 12 सेकंड की है, और अब हमारा फ्रेम तो होता ही 5 सेकंड का है ना, तो अभी देखें इसको हम खुद ब खुद कस्टमाइज कर लेंगे अपने लिए, ठीक है। ये मैंने इधर ऐड की, ठीक हो गया। अब ये जो है 12 सेकंड की वीडियो है, मैं सिंपल यहाँ से इसको शॉर्ट करूँगा, ठीक है। ये नीचे से इसको पकड़ के मैं 5 सेकंड पे ले आऊँगा, ये ले आया, ठीक है। अब हमें इधर 4 to 5 वीडियोस लगानी है एक साथ, तो उसको लगाने का तरीका ये है कि इसका जो साइज़ है हम छोटा करेंगे, ठीक है। जैसे हम पिक्चर्स का साइज़ छोटा करते थे, तो इसका मैंने अभी फ़िलहाल छोटा कर दिया साइज़, और इक्वल भी रहना चाहिए। हाफ वो लाइन आ जाती है, देखें यहाँ से ये मिडिल हाफ हो गया। अब ये ठीक है, सेंटर भी हाफ हो गया हमारा। अब ऐसे ही इधर एक वीडियो लग जाएगी। अब लेट सपोज पाकिस्तान की होनी चाहिए, शर्त ये है। ये आ ये गई एक। अब्दुल रहमान, आपने ये जो फ्रेम लिया है ये स्क्वायर फ्रेम है? जी ये बेस नहीं, ये रेक्टेंगल है ना। स्क्वायर तो um, स्क्वायर हमने बनाया। मिस जवेरिया, जब हम वीडियोस बनाते हैं ना, वो 16:9 में बनती है। और जो हम कैनवा डिजाइन करते हैं, जो पोस्ट बनाते हैं ना, तो वो 1080 बाय 1080 में बनती है। पोस्ट का स्क्वायर होना जरूरी है, वीडियो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। वीडियो हम जो है वो 16:9 में बनाते हैं, जो कि हमारे वैलिड है यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे और फेसबुक पे। हाँ, इंस्टाग्राम पे जब आप अपलोड करेंगे ना, तो वो इसकी ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को जो है वो अब जितना उसको दिखाना है ना, वो उसके पार्ट्स को ऑटोमेटिकली क्रॉप कर लेगा। तो कोई सर मसला नहीं है, इंस्टाग्राम पे हो भी एक जाएगी, दफा ठीक है। एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे वीडियो की डायमेंशन और उसकी, मैं लिख रही हूँ उसमें ना। जी प्लीज। हम जो वीडियो बनाते हैं वो 16:9 में बनाते हैं, जो कि यूट्यूब
फेसबुक और लिंक्डइन के लिए वैलिड है। इंस्टाग्राम के लिए वैलिड इस तरह नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो उसके पोस्ट को, जो कि 1080 बाय 1080 जो है उसकी डायमेंशन को एक्सेप्ट करता है, तो जब आप वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को उतना क्रॉप कर देगा जितना उसको नहीं पोस्ट चाहिए होगा। तो दैट्स प्रीटी ओके। और अगर आप चाहेंगे इंस्टाग्राम आपकी वीडियो में से ही रील्स बना दे, तो आप उसको वीडियो को रील्स की फॉर्म में भी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते। श्योर में। अच्छा मिस, मैं क्वेश्चन कर लूं? जी मिस गुजा। अब्दुल रहमान, आपने ये पहली जो वीडियो थी इसको आपने श्रिंक किया, ऐसा है कि ये सारी की सारी फिर हमने श्रिंक ही करेंगे या स्प्लिट करके भी हम इसको लगा सकते हैं वीडियो को? अगर हमने 4 वीडियोस एडिट करके एक ही इसमें कैनवस पे लगानी है, तो पहली को आपने इस तरह से श्रिंक किया था, तो दूसरी ये चारों की चारों ये इनमें है ये कि इनको श्रिंक ही बिल्कुल है। करना है, या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि एक को स्प्लिट कर ले दूसरी को श्रिंक कर ले? हम सारी को इस तरीके से कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। ये देखें, अभी मैं, अब इसको मैं छोटा खुद नहीं कर रहा, ठीक है। अभी स्प्लिट वाला जो आपने बात की वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारे पास फ्रेम काफ़ी बड़ा है, ठीक है, वीडियोस की वजह से, ड्यूरेशन की वजह से। अब लेट सपोज एक ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको भी हम छोटा करके इधर लगा देते हैं। अब आपने जो बोला स्प्लिट किस तरीके से करेंगे, टाइम भी बचे हमारा और काम भी हो जाए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें फ्रेम्स काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले 5, लाइक इतना मुझे चाहिए फ्रेम, ठीक है। मैं वही सेम स्प्लिट करूँगा, तो ये देखें अब मेरे पास ये पूरा फ्रेम एक आ गया, ठीक है। ये इधर से हट गया। अब यही चीज़ मैं एक एक फ्रेम के साथ कर रहा था, इसको छोटा खुद ही करना पड़ा था मुझे। तो यहाँ से आसानी ये हो गई कि मैंने पूरा ये बना लिया। वीडियोस की ड्यूरेशन ऑटोमेटिक मैंने स्प्लिट करके ख़त्म कर दी, मतलब कम कर दी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से और कम करूँगा, लाइक 5 सेकेंड। हो गई, ठीक है। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ। Oh, take me on a journey through the colors of this land. ठीक है, ये वीडियोस अब लग गई हैं, ये लग भी प्यारी रही हैं, ठीक है। मैं अच्छा, वापस से ये नहीं चला के दिखा, पॉसिबल कि इसमें हम 5 सेकंड से इसको बढ़ा दें? मुझे लगता है कि 5 सेकंड में तो इन चारों वीडियोस का मजा भी नहीं आना देखने का। बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये लें और मैं बढ़ा देता हूँ इसको। लेकिन मसला ये है ना कि हर वीडियो की डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत छोटी है, अब फिर आपको सारी वीडियोस इक्वल लेनी पड़ेंगी। अभी मैंने इसमें कुछ 12 सेकंड की ली हुई है वीडियो, कुछ 16 सेकंड की है, कुछ 5 सेकंड की है, तो ड्यूरेशन का फिर इश्यू आ जाता है। अगर आपने जिस तरीके से आप कह रही हैं कि पूरी पूरी, वो फिर आप इक्वल लें, लाइक 16 सेकंड की है तो चारों की चारों 16 सेकंड की होनी चाहिए। और फिर अभी वैसे मैंने इसको थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है, लेट सपोज इतना मैंने इसको बढ़ा दिया है, 1 सेकंड बढ़ाइए, क्योंकि आगे अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें ये एक वीडियो हमारी गायब हो रही है। चला के दिखा देता हूँ अब मैं फिर से। Not hide. Oh, take me on a journey. ठीक है, मैं फिर इसको चलाता हूँ ताकि Cannot hide. Oh, take me on a journey through the colors of this land, where every shade of soul is drawn. ठीक है। अब ये थोड़ी सी बड़ी मैंने कर दी है इसको, ठीक है। इसी तरीके से ये वीडियोस हो गई। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं आज एक और चीज़, कि हम जो है ट्रांजिशंस वगैरह किस तरह से लगाते हैं और क्यों लगानी चाहिए, ठीक है। मैं शुरू में आता हूँ। अच्छा, ट्रांजिशंस हमारे पास आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से भी आ सकती है
ये देखें, हर फ्रेम के बाद ये वाला सेकंड ऑप्शन होता है, छोटा सा, मैं इसको हाईलाइट अगर मैं कर सकूं तो। इधर अभी गौर कीजिएगा, इधर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये ये वाला, ये ऑप्शन हमारे पास होता है ट्रांजिशंस का। अब मैं इस पर क्लिक अगर मैं करूं तो जी, क्लिक किया, ठीक है। जैसे ट्रांजिशन वाले इस पे मैंने क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास काफ़ी सारी ट्रांजिशंस आ गई। देखें, जिस तरीके से मूवीज़ वगैरह में होता है कि एक क्लिप, क्योंकि ये डिफरेंट फ्रेम्स है ना, तो थोड़ा सा इस तरीके से लगता है कि अलग अलग क्लिप्स लगाए हुए हैं, एडिटिंग की हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी वीडियो प्रोफेशनल लगे, तो उसके लिए ये ट्रांजिशंस हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो आपकी वीडियो है ना, वो ऐसा नहीं लगता कि कटिंग हुई हुई है, ऐसा लगता है ये एक ही पूरा सीन है, डिफरेंट जगहों का एक ही साथ इसने पूरा एक वीडियो बना दी है, प्रॉपर वीडियो। अब्दुल रहमान, ये ट्रांजिशन का ऑप्शन कहाँ पर था? अच्छा, एक तो ऑप्शन मैंने जिस तरीके से हाईलाइट किया था, एक अभी इधर गौर कीजिएगा, मैं अभी इधर माउस लेके जाऊंगा तो इधर जहाँ मैंने सर्कल किया है यहाँ ऑप्शन आएगा। ये ऐसे ही हर फ्रेम पे आता है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ट्रांजिशन का ऑप्शन हमारे पास, एक सेकेंड, अगर हमें ट्रांजिशंस लगानी है तो यहाँ से हम वही राइट क्लिक करें, ये ऐड ट्रांजिशंस का ऑप्शन है, ठीक है। दो तरीके, एक तो ये है कि हम इस फ्रेम पे रख के राइट क्लिक करें, ऐड ट्रांजिशन का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा ये है कि हम डायरेक्ट इधर क्लिक करेंगे, ट्रांजिशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब यहाँ से ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को कि ये वीडियो कट हुई हुई है, ये अब एक ही वीडियो लगेगी, ये दो फ्रेम गौर से देखिएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब ये ये ट्रांजिशंस इसलिए लगाई जाती हैं। अब इसमें डिफरेंट डिजाइन होते हैं, जो मर्जी आपने डिजाइन लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज इसके अलावा ट्रांजिशंस का, मैं अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये जब प्लस का साइन आया था, उसके ऊपर क्लिक करने से ट्रांजिशन लग जाएगी, और दूसरी प्लस अगर आप के कह रहे हो साइन, जो प्लस का साइन है मतलब, ना, हाँ हाँ उससे पेज ऐड होता है, नया फ्रेम ऐड होता है। लेट सपोज आपको, आपने पूरी जी, सुन ली, अब आपको बीच में ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस ये जो लाइन है इस पे एक मतलब ये सीन सूट नहीं कर रहा, मुझे दूसरा सीन ऐड करना है, ठीक है, दरमियान में ही। हाँ तो हाँ वो आप यहाँ से ये प्लस ऐड पेज, ठीक है, ये दरमियान में आपको एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाता है, यहाँ फिर आप कर सकते हैं। इसके नीचे मैंने कहा था कि इसके नीचे आपके पास एक ऑप्शन होता है, मैं फिर दिखा देता हूँ। ये ऐड पेज का था प्लस वाला, इसके नीचे देखें, ये छोटा सा ऑप्शन है, हाँ हाँ, नजर ये आ गया। ट्रांजिशन का है। अगर आपको इधर से नहीं समझ आता तो आप जो है ये फ्रेम पे ही माउस रखें और राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड ट्रांजिशन, ठीक है। दो तरीके, दोनों मैंने आपको बता दिए। ये तो मेथड हो गए। आपने साथ ये भी बोला कि मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजिशन लगा सकते हैं, वो कहाँ से लगेगी अगर वो कोई ये है इसको ना, ऐड आपके करना पास चाहे? डिजाइन है डिफरेंट, मतलब अलग अलग है ना, ये क्रॉप है, ये इस तरीके से आएगी, फिर एक ये है, एक सर्कल वाली है, ये डिजॉल्व है, ये स्लाइड वाली है, ठीक है। ये आपके पास अलग अलग है। अब जैसे ये स्लाइड वाली है, मैंने ये लगाई एक, ठीक है, ट्रांजिशन। अब इसके अंदर कुछ चीजें हमारे पास ऐड हुई, जैसे ये आपको, ये जो है ड्यूरेशन स्पीड है ट्रांजिशन की, लेट सपोज अभी तो बिल्कुल छोटी सी, ये कोई 0.5 की है, ठीक है, ट्रांजिशन। मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से, ये देखिए, अभी बिल्कुल कम है। अगर आपको इससे भी कम अपनी ट्रांजिशन रखनी है तो वो आप यहाँ से स्पीड अपने आप हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड के अलावा अभी मैं फिर अगर इसको चलाऊं तो ये देखें, अभी राइट साइड से आ रही है, ठीक है। अगर आपको इसको लेफ्ट साइड से लेके आना है तो यहाँ से ये ऑप्शन है, लेफ्ट से लाना है, लेफ्ट से आ जाएगी, ये देखें। अब इस तरह से ये आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। वैसे तो हम इसको राइट से ही करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा भी लगता है, लेकिन आपके ऊपर है, ये कुछ चीज़ें डायरेक्शंस है, जिस मर्जी डायरेक्शन से आप, डायरेक्शन में आपको इसको करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है।
अच्छा, अब आखिरी ये चीज़ आज और हम कर लेते हैं, और वो ये है कि लाइक हमने ये जो वीडियोस बनाई हैं इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेट करने का तरीका क्या है, वो ये है कि यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन होता है, ठीक है, एनिमेट का। सही हो गया। अब आपने अगर एनिमेट करनी है कोई भी चीज़, तो आपने सबसे पहले वो फ्रेम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एनिमेट पे क्लिक करना है। एनिमेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ट्रांजिशंस थी, ट्रांजिशन आपकी फ्रेम की होती है, ठीक है। ये जो फ्रेम है, ये ट्रांजिशंस खाली इसके लिए इस्तेमाल होती हैं जो आपके एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को जोड़ देती हैं। अब जो ये वीडियोस हैं, लेट्स सपोज हम जो है एक कोई भी क्लिप उठा लें, जिस तरीके से यूट्यूब पर भी होती है, कोई एक बंदा अपने चैनल पे किसी और की क्लिप देख रहा है, वो कहता है आप ये क्लिप देखें, ठीक है, वो मतलब नीचे क्लिप आ जाती है ना, वो जो ट्रांस होती है, एनिमेट होती है क्लिप। तो ये सेम इस तरीके का काम करती है, इसके भी अलग अलग डिजाइन हैं। अब अगर आपको एनिमेशन लगानी है तो उसका तरीका है, और वो ये है कि आप सबसे पहले एक फ्रेम को, मतलब एक वीडियो को सिलेक्ट कर लें, फिर यहाँ से एनिमेट पे क्लिक करें। एनिमेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप हर वीडियो को एनिमेट करें। अपनी मर्जी से चाहें तो अलग अलग एनिमेशंस लगा सकते हैं। अब ये देखिएगा अपनी वीडियो, मैं थोड़ा सा इसको बैक लेके जाता हूँ यहाँ से। not hide. Oh, take me on a journey. मेरा नेट अभी बहुत ज़्यादा जो है स्लो चल रहा है, तो आई थिंक आपको थोड़ी सी लैगिंग आ रही होगी देखने में। Oh, मुझे ये take me on एनिमेशन a नहीं समझ आया, दोबारा एक दफा एनिमेशन प्लीज रिपीट कर दें कि ये जो ये वाला जो है, ये क्लिप हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद उसके हमने एनिमेशन पे जाके क्लिक करना है। एनिमेट पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ट्रांजिशंस पे हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे ना, हाँ हाँ वैसे ही यहाँ भी काफ़ी सारे डिज़ाइन है, ठीक है। आपको जो प्यारा लगता है डिज़ाइन, आपने वो रख लें अपने पास अपने लिए ट्रांजिशन में। लेट सपोज मैंने अभी एक ये रखा था, अब मैं एक ये वाला रख लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। सही हो गया। अब इस तरीके से ये आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी से एनिमेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन स्टिल एक है कि जैसे हमने ये 4 वीडियोस लगाई थी, तो हमने ये हमारा तो ये एक ही 5 सेकंड का एक फोल्डर था, तो जब हमने एनिमेशन लगाई है इस पे, तो वो जो एनिमेशन हमने कोई भी एक सेलेक्ट किया, तो वो चारों चारों जो हमारी वीडियोस उन सब पे इकट्ठे लग जाएगी एनिमेशन? नहीं, ये हर फ्रेम पे आपको खुद करनी पड़ती है एनिमेशन। मतलब ये चारों वीडियोस जो हैं, अगर हमने इनमें एनिमेशन लगानी है तो हर एक के ऊपर हर एक को अलग अलग पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई लगानी ऑल है। का भी ऊपर ऑप्शन होता है, अप्लाई ऑल पे भी कर सकते हैं आप। हाँ, वो होता तो है, लेकिन वो आपके ऊपर है ना। लेट सपोज आपने डिफरेंट एनिमेशंस लगानी है और आप चाह रहे हैं एक ही दफ़ा में हो जाए, तो वो नहीं होता। वो फिर आपकी एक ही एनिमेशन तमाम वीडियोस पे लगा देगा, और वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। पार्टिसिपेंट्स, एनिमेशन और ट्रांजिशन दो डिफरेंट चीजें हैं कैनवा के अंदर। एनिमेशन ये है कि आप एक स्टैटिक पिक्चर को आप वीडियो की फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, वो एनिमेशन है। लेकिन जब आप ट्रांजिशन में आते हैं, तो वो जो आपने एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे शिफ्ट करना है, या उसको एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से कनेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। अब जो ट्रांजिशन है उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं कि आप एक ट्रांजिशन को किस किस एंगल से जो है वो आप इनेबल करना चाह रहे हैं। वो लेफ्ट साइड से आपको वहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और उस तरह से आप उसको इनेबल करा सकते हैं। जो एनिमेशन होता है ना, वो ये अब्दुर्रहमान ने जो अभी तक हमारे साथ स्क्रीन शेयर किया ना, इसके ये टॉप पे ये वाला एनिमेशन का साइन है। ये एनिमेशन ये होती है कि अगर आपकी ये वाली पिक्चर जो है ये स्टैटिक है, आप इसको एनिमेट करा के एक वीडियो की फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो आप एनिमेशन पे क्लिक करके इसको एनिमेट करा सकते हैं। लेकिन जब हम एक सीन को, जैसे लेट्स सपोज कि हमने ये वाले दो सीन आपस में कनेक्ट करने थे, तो इनके दरमियान में हम अपना कर्सर रखेंगे तो छोटी सी नीचे ट्रायंगल आएगी,
ऊपर में एक प्लस का साइन आएगा। तो जो ऊपर वाला प्लस का साइन होता है वो आपका एक न्यू फ्रेम ऐड करने के लिए होता है, एक न्यू कैनवस ऐड करने के लिए होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपने जब अपनी वीडियो बनाई तो आप दरमियान में एक सेंटेंस जो है या एक सीन स्किप कर गए, जो कि आपको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा सीन था और ये उससे लिरिक्स से बहुत मिलता जुलता था। तो आप क्या करेंगे, उन दो सीन्स के दरमियान में बजाय इसके कि पूरी वो कट करके या उसको डिलीट करके फिर आप उस सीन तक पहुंचे, आप उन्हीं दो सीन्स के दरमियान में क्लिक करेंगे तो प्लस साइन पे क्लिक करने से एक नया कैनवस ऐड हो जाएगा। जब वो नया कैनवस ऐड होगा तो उसके अंदर आप नई एक और वीडियो ऐड कर सकते हो उस एक गैप को फिलअप करने के लिए, जो कि सीन आपको बहुत प्यारा लगा और वो लिरिक्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था। तो आपने एक नया सीन ऐड करके उनको उन लिरिक्स के साथ सिंक कर लिया। तो उसके नीचे एक छोटी सी ट्रायंगल आएगी, वो आपकी ट्रांजिशंस के लिए है। उस पर क्लिक करके आपने ये मेक श्योर करना है कि जैसे पुराना सीन नए सीन के साथ किस तरह से जो है वो मर्ज होगा, या नए सीन को पुराने सीन के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकता हूँ कि पुराना सीन जब एंड हो रहा हो तो नया सीन कैसे स्टार्ट हो। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो आपकी ट्रांजिशंस है वो आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को 10 टाइम्स इनहेंस कर देती है। अगर आप सिंपली सिर्फ वीडियोस को अपलोड करते हैं और उनको एक सिंपल फ्रेम में ऐड करके आप जो है वो आप अपनी पूरी वीडियो कंप्लीट कर देते हैं, वो और दूसरी वीडियो जिसको आपने प्रॉपर ट्रांजिशन के साथ ऐड किया है, उन दोनों में डिफरेंस आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आंखों को देखने में कौन सी ज्यादा अच्छी पिक्चर लगती है। इसके साथ ही साथ जो हम जब ट्रांजिशन अप्लाई कर लेते हैं तो एनिमेशन में यहाँ पे ट्रांजिशन के लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारी ट्रांजिशन मिल जाती हैं, जिसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरा एक सीन दूसरे सीन के साथ जब कनेक्ट हो रहा हो तो वो किस तरह से वो अपेयर होना चाहिए। वो आप जो है वो सर्कुलर जो है वो चाह रहे हैं, कोई कर्टन साइड पे हो तो आपका सीन नजर आना चाहिए। जी आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उन सारी ट्रांजिशन को अप्लाई करना। ठीक है जी अब्दुलरहमान, मिस लैला का हाथ काफी देर से खड़ा है, उनसे सवाल है। जी मैम, अब्दुलरहमान बेटे, मैंने ना आपसे एक ये पूछना है कि जब हम पिक्स को लेंगे ना, 4 को एक साथ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ा लाउडली बोलूं? जी जी क्लियर है। अच्छा, तो जब हम 4 पिक्स को लेते हैं ना, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि उनका एक मतलब एक तस्वीर है ना रुकी हुई है। जब हम वो 4 एक साथ ऐड करते हैं, उनका कोई ना कोई ऑब्वियसली कनेक्शन होता है दिखने में ना, हमारी वॉइस के साथ और उनका आपस में एक खूबसूरत कनेक्शन बिल्ड होने के हमें जो एक वाइब्स आ रही होती हैं, हम उन 4 पेजेस को लेंगे, ठीक है? फिर उन पे हम एनिमेशन करें या वो एक स्विच कह लें या उसको स्लिप कह लें या जो भी, मुझे अभी सही वर्ड्स नहीं यूज करने आ रहे, मतलब वो जो एक हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं और वो जो एक हम लुक दे रहे होते हैं। अच्छा, वो बीच में मेरा दूसरा सवाल ऐड हो गया। अच्छा, वो एक मैंने खुद भी ये चीज ट्राई की है, एक पेज से दूसरे पेज पे, और स्टिल हम जब ये वे यूज करेंगे तो हर पेज पे डिफरेंट लुक जरा क्या सूट करेगी, या जो एक पेज पे हम अप्लाई करें, एनिमेशन की बात नहीं कर रही मैं वो कर रही हूँ जो अभी मैम बता रही थी कि हम एक पेज को एक सेटिंग देते हैं कि एक पेज कैसे आएगा, उसके बाद दूसरा पेज कैसा हमारा आ रहा होगा। ट्रांजिशंस। हाँ जी, ट्रांजिशन, सॉरी मैं भूल गई थी नाम। तो वो क्या हम हर पेज पे डिफरेंट लगाएं? क्योंकि मैंने ये चीज यूज की तो मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। मतलब वो एक आवाज और तस्वीर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको हर पेज पे फिर एक ही स्टाइल में अप्लाई करें। इसमें आपकी क्या राय है? और क्योंकि मुझे थोड़ा आपका टेस्ट इसमें लग रहा है कि आपको थोड़ा गॉड गिफ्टेड है थोड़ा इसमें आपका सीन। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि अगर हम जैसे मेरी पिछली बात के 4 तस्वीरें ले रहे हैं, उनके आपस में एक कनेक्शन हमें फील हो रहा है कि हमारी आवाज से और इनके आपस में काफी एक रिलेशन है, उसको जब हम एनिमेट करें या वही ट्रांजेक्शन करें, वो एक ठीक है, मुझे समझ आ गया। बट मेरी जहाँ वो सुई अटकी हुई है ना, वो वीडियो पे आके, जब हम एक वीडियो चाहे जितनी सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, वो एक वीडियो एक फ्रेम में इनफ हो जाती है। जब हम 4 की डिमांड पे आते हैं, हम अपने जहन में क्या रख के 4 को ऐड करेंगे, और रखते हुए हमारे जहन में क्या होना चाहिए कि ऐसी कौन सी वॉइस है जिसके लिए हम 4 वीडियो एक पेज पे लाए हैं, और क्या इंस्ट्रक्शंस आप हमें देंगे इससे रिलेटेड? और ये भी बताएं कि ये जो स्टार्ट विद डाटा और ये नीचे जो है ना बार चार्ट और लाइन, ये सारा ये भी बताइएगा साइड पे, जो ये फिरोजी कलर का सारा ये है, इनका मुझे नहीं पता, ये थोड़ा बता दें। थैंक यू, बस यही मेरे थे इस क्वेश्चन।
जी, तो आपका पहला क्वेश्चन जो था वो ये है कि लाइक ट्रांजिशंस हम अलग अलग रखें, तो मैं मतलब सेम रखें ना। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आपके ऊपर है। मैं खाली आपको आइडिया दे सकता हूँ, बाकी ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सॉन्ग को या किस तरीके से आप अपनी वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, जैसा आपको पसंद आता है वैसा आप अच्छा, रखें। मैं इसमें ना आपकी राय सुनना चाह रही थी। वो मुझे याद है कि आपने कहा था ऑब्वियसली हर इंसान अपने माइंड के मुताबिक खेल रहा होता है अपनी चीज़ों से, अपने गैजेट से। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात दोहराई कि मुझे लगा इसमें थोड़ा-सा आप मैं अभी भी आपका आईडी खोल के बैठी थी साथ-साथ और मैंने आपकी चीज़ें जज की हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको ना इसमें थोड़ा-सा अल्लाह की तरफ से थोड़ा-सा वो गॉड गिफ्टेड हैं आप इसमें। इस कलरों के साथ आपकी फ्रेंडशिप है अल्लाह की तरफ से। तो मैं आपसे गाइडलाइन लेना चाह रही थी कि हमें क्या चीज़ आप क्या हमें एडवाइस करेंगे? मुझे क्या एडवाइस करेंगे? आ, वीडियो के ऊपर होता है मैम कि आप जैसी आपकी वीडियो है उसके हिसाब से, लेट सपोज आपकी एक वीडियो है वो बात ये एक पे ही हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ट्रांजिशन सेम ही रखें। लेकिन अगर बात लेट सपोज थोड़ी सी अलग अलग शहरों पे हो रही है ना, जैसे कराची पे हो गई सॉन्ग के अंदर बात, फिर आगे इस्लामाबाद पे हो रही है, फिर लाहौर पे हो रही है, तो इसके अंदर आप फिर ट्रांजिशन अलग अलग रख सकते हैं। लेकिन अगर बात ही खाली पाकिस्तान पे हो रही है, पूरी कंट्री के ऊपर हो रही है, तो फिर आप सेम रख लें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला बता दें। अगला आपका था कि एक वीडियो, वो भी बिल्कुल हम एक भी रख सकते हैं वीडियो। और ज़्यादा, क्योंकि देखें ये तो मैंने आपको पिक्चर्स बता दी, लेकिन पिक्चर्स का जितना कम से कम यूज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं ना कि पिक्चर्स। ठीक है, हम कर सकते हैं ऐड, लेकिन इसको शुरू में ऐड ना करें, इसको कहीं दरमियान में ऐड कर दें और छोटा सा क्लिप रख लें अगर हमें पिक्चर्स ऐड करनी है तो। अब वरना अगर वीडियोस करनी है तो हम सिंपल वीडियो भी रख सकते हैं एक। ठीक है, बट जो है अगर हम चाहते हैं लाइक बेसिक, मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें वीडियोस में एनिमेशन बहुत कम इस्तेमाल होती है, एनिमेशन लगती नहीं है। ठीक है, बहुत कम जगहों पे वीडियोस में एनिमेशन इस्तेमाल होती है। अच्छा, ऐसा है मसला कि हम 4 वीडियोस या पिक्चर्स का आपको मशवरा इसलिए दे रहे हैं कि जब हम अपना टाइटल अनाउंस करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें अपने टाइटल के अकॉर्डिंग कोई वीडियो नहीं मिल रही होती और वो एक वीडियो इनफ नहीं होती हमारे टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स सपोज कि आपने ऐसी वीडियो बनानी है जिसमें अभी जैसे कि आपके 2 डिफरेंट सिटीज के बारे में बात की जा रही है, जैसे कल वाला जो टॉपिक था उसमें एक सवाद और एक हुंजा का कॉम्बिनेशन था, तो आपको सवाद की एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो करना है, हुंजा का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो करना है। तो जब आप उसको टॉपिक को अनाउंस करने जा रहे होते हैं ना, तो आपको दोनों की जो चीजें सिमिलर नहीं है, आपने उनसे उनको शुरू करना है ताकि दोनों शहरों का अलग अलग जो रिवाज है, रस्मों और रिवाज है, भी जो उनकी कल्चर है, जो सकाफत है, वो सारी चीजें अलग नजर आए। तो इसलिए समटाइम ऐसा होता है कि जब हम टॉपिक अनाउंस कर रहे होते हैं तो हमें एक वीडियो इन सफिशिएंट नहीं लगती, हम फिर उसमें 2 वीडियोस ऐड करते हैं, ये 4 पिक्चर्स या 8 पिक्चर, जितने फ्रेम्स आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप प्रॉपर पूरा एक ही सीन यूज करते हुए पूरा एक अच्छे तरीके से अपना मैसेज डिलीवर कर देते हैं कि अच्छा मैं ये बताना क्या चाह रहा था और इसमें किस तरह से मैं मैसेज डिलीवर करूंगा। तो इसलिए वो कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियोस जो है वो शेयर की जाती है ताकि एक मैसेज बहुत क्लियर चला जाए। दूसरी बात, समटाइम ऐसा होता है कि आपके लिरिक्स जो है ना वो इतने अप्रोप्रिएट नहीं होते कि आपके मैसेज को डिलीवर कर सके, तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियोस या पिक्चर्स हैं वो इस चीज में बहुत सपोर्ट कर देते हैं कि आप 4 या 5 या 6 या 3 जो वीडियोस आप ऐड करेंगे वो आपके लिरिक्स को ज्यादा सपोर्टिव बना देते हैं और आप बहुत अच्छे से अपनी बात डिलीवर कर सकते हो और आपकी विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसलिए फिर हमने जो आपको अभी बात समझाई कि आप 4 ऐड करें, 8 ऐड करें, 6 करें, जो भी करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियो से आपकी चीजें क्लियर हो जाती है। जिसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने लाहौर के खानों के बारे में बात करनी है, तो लाहौर का कोई एक खाना मशहूर नहीं है, लाहौर के ट्रेडिशनल खानों में वहाँ के निहारी, सॉरी, सिरी पाए और ये क्या कहते हैं उसको, अ, दूसरा ये जितना भी फास्ट फूड है अगर उसकी बात करते हैं तो पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आपने एक साथ दिखानी है ताकि आप उस एक चीज को पूरी एक फ्रेम में कवर कर दें और अगले फ्रेम को अगली चीज के लिए यूज करें। तो जब हमने एक फ्रेम में एक चीज को कवर अप करना है तो हमें पिज्जा भी दिखाना है, बर्गर भी दिखाना है, आपने चाउमीन भी दिखाना है, आपने चाइनीज भी दिखाना है, इटालियन भी दिखाना है, तो वो कॉम्बिनेशन से ही आप दिखा सकते हैं, एक जी। वीडियो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगी।
जी मैम। अच्छा अब्दुल रहमान बेटे, ये भी बता दें जो आपकी साइट पे ना ये ओपन हुआ है, और ये स्टार्ट विद डाटा, ये जो नीचे आ रहे हैं ना ब्रांड किट, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और इसका क्या काम है? आप यूज करते हैं इसको? अगर करते हैं तो किस लिए करते हैं? जी, तो मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं किया। वैसे ग्राफ के लिए मेरा ख्याल है इस्तेमाल होते हैं, जिस तरीके से हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो जी उसमें जी। ये इस्तेमाल होते हैं, ये देखें। ब्रांड किट मिस तब इस्तेमाल होती है जब आपने कोई लोगोज डिजाइन करने होते हैं, जो कंपनीज के लोगोज बनते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉपर कलर पैलेट से उसको यूज करना पड़ता है कि आपकी कंपनी की ये दो मेजर कलर्स रहेंगे जो आप यूज करेंगे। जैसे कि रिहान स्कूल सिस्टम को अगर आप देखते हैं तो उनका मेजर कलर येलो और ग्रीन है। आप जितने भी हमारे लोगोज देखेंगे उन सब में येलो और ग्रीन बहुत प्रोमिनेंट है। ग्रीन रिहान फाउंडेशन का अपना है, और जो रिहान स्कूल सिस्टम है उसका येलो कलर है। तो आपने जितने भी फर्दर आप हमारे लोगो देखे होंगे, जो कि मुनव्वर कैंपस का होगा, कुरंगी कैंपस का होगा, ऑनलाइन कैंपस का होगा, हरियाणा टीचर्स इंस्टीट्यूट का होगा, येलो कलर आप में सबको नजर आएगा। तो ये जो ब्रांड, आप जब कलर में जाते हैं ना, ब्रांड्स के लोगोज को डिजाइन करते हैं, तो ये ब्रांड कलर आपको वहां पे हेल्प आउट होते हैं। अदरवाइज नॉर्मली इनका कोई ज्यादा काम नहीं। ओके मैम, थैंक यू अब्दुल रहमान बेटे। जी बिल्कुल शान। मिस मरियम, मैंने क्वेश्चन करना था कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो जो आपके लिरिक्स होते हैं उनको जब आप अप्लाई करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो नहीं मिलती। फिर मैंने तो फिर ये भी किया है कि वो पूरे जो लिरिक्स हैं उनको सुन के उनका लुबे लुबाब निकाल लो, कोई एक दो लफ्ज वो लफ्ज लिख दो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वीडियोज आपके सामने आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि आपको वीडियो नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल एक मखसूस चीज़ जो है वो मुझे नहीं मिली लेकिन बहुत सारे लोगों को मिली है। ये मैंने देखी है ना, बहुत सारे लोगों के मैंने सॉन्ग्स देखे हैं, बड़े बड़े अच्छे बनाए उन्होंने, कि मैं कैनवा पे बैठी होती मैं देख रही होती हूँ तो मुझे तो फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी है कि मैंने अगर पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा है तो मुझे उसकी वीडियो नज़र नहीं आई फॉर एग्जांपल। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये हुंजा और स्वात में उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लोगों के बड़े अच्छे तरीके से ये कुछ डांस और कुछ ऐसी चीजें लगाई हुई थी जो मुझे तो कैनवा पे नहीं मिली। वो मुझे क्यों नहीं मिली? कहीं छुप के बैठी है या उन्होंने कहीं और से ऐड की थी? ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आप राइट कीवर्ड्स नहीं यूज करते तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जैसे मैंने अगले दिन भी ये बात समझाई थी कि जब हमने अपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो चैट जीपीटी को आप डिटेल्ड प्रॉम्प्ट शेयर करें, आप करने क्या जा रहे हैं, आपको करना क्या है और आपके लिए वो क्या कर सकता है। तो वो आपका एक एक सीन आपको डिजाइन करके दे देता है कि इस एक सीन के अंदर आपने किस तरह की वीडियो ऐड करनी है। लड़का कहाँ बैठा होगा, उसने बुक पकड़ी होगी, वो दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ेगा, नहर के किनारे बैठ के पढ़ेगा, नहर जो है वो राइट साइड से आ रही होगी, लेफ्ट साइड से आ रही होगी, और वो जो नहर है उसके दूसरी किनारे पे कोई खड़ा होगा नहीं होगा। ये सारी चीजें वो आपको पूरा एक सीन में डिटेल से बताता है। अगर आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट ही इस तरह से देंगे तो आपके लिए वो बहुत डिटेल्ड आपको ये सारे सीन्स भी बना देता है। आप उस सीन को कॉपी करके अपने कैनवा के अंदर पेस्ट कीजिए, एलिमेंट्स में जाके आपको रेलिवेंट वीडियोस मिल जाती है। समटाइम बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको रेलिवेंट वीडियोस कैनवा से नहीं मिलती, तो हम दूसरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं और वहां से वीडियोस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट को यूज कर सकते हैं, आप गूगल को यूज कर सकते हैं, और आप अपनी वीडियोस को वहां से डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जब हम यूट्यूब की, गूगल की और पिंटरेस्ट की वीडियोस ऐड करेंगे, तो पिंटरेस्ट और गूगल और यूट्यूब जो है ये तो हमें कॉपीराइट्स के क्लेम दे देंगे। हम इससे कैसे बचेंगे? अब वो एक ट्रिक है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके कमिंग सेशन में वो वाली ट्रिक मैं जरूर शेयर कर दूंगी कि आप किस तरह से उस कॉपीराइट क्लेम को स्टॉप कर सकते हैं, कौन सा फिल्टर्स और क्या चीजें अप्लाई होंगी कि हम उस कॉपीराइट को खत्म कर सकें। जहां आपको ये नहीं पता चलता कि अच्छा मुझे एक सीन अप्रोप्रिएट नहीं मिला, उसको बनाने का भी एक तरीका है और उसकी भी पूरी एक आर्ट है। तो वो भी मैं कोशिश करूंगी कि अगले सेशन में कर लें। आज ये आप कर लें, मैं आपका सवाल दोनों नोट डाउन कर लेती हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे ही हम नेक्स्ट अपना सेशन करेंगे इस फेसलेस वीडियो पे, तो मैं ये दो सवाल जरूर आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है? अच्छा मिस, एक क्वेश्चन और था कि ये जो हम फेसलेस वीडियो बनाते हैं ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है पार्ट ये कैनवा का ये ग्राफ वाला, ग्राफिक्स वाला।
तो क्या वो भी इसमें ऐड होती है, या वो अलग, वो बिल्कुल अलग डायमेंशन है? ग्राफ वाला कौन सा वाला? ये जो अब तेरे पता मैंने नहीं अभी क्या। खुले में ये वाले ग्राफ्स आप कह रही हैं? नहीं, मैंने वैसे देखा था ना, तो वो मुझे एक नजर आया था कि उसमें वो उसमें लाइनें लाइनें सी आ रही थी कुछ इस तरह। यहाँ नहीं है वो, मैंने खुद देखा था, खुद सर्च की थी, ये हम्म। कैनवा पे खोल के। तो उसमें वो जैसे वो लाइनें सी कहीं नजर आ रही थी कुछ इस तरह से करके ना। तो वो क्या कोई डिजाइन बनाना होता सिर्फ उसमें इस्तेमाल होनी है, या वो इसमें भी ऐड हो सकती है? मैम डिपेंड ये करते हैं ना आपके लिरिक्स पे। आपके लिरिक्स किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो वाले ग्राफ्स ऐड करने हैं। जैसे अब अगर आप एआई की वीडियोस बनाते हैं और वो आपको डाटा कलेक्शन और इस तरह की चीजों पे बात करते हैं, तो वहां आपको डेफिनेटली ग्राफिक वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प आउट रहती हैं और बहुत अच्छी भी लगती है। इज दैट ओके मिस गुलशान? जी मिस, हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी मिस गुलशान। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज ये एक वीडियो एडिटिंग का सॉन्ग या जो भी चीज़ हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा अब लाउड बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा, जैसे अब ये वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने इस पूरी वीडियो के ऊपर एक लोगो लगाना है, वो कैसे लगाएंगे? जी अब्दुलरहमान, ये बताइएगा। हमने अपना वाटरमार्क रखना है, जैसे कि आपने अपना लोगो ऐड करना है और आपका हम्म। लोगो अब्दुलरहमान शेख साहब का आपके पास मौजूद है। हमें एक लोगो लगा के बता दें कि पूरी वीडियो पे वो लोगो कैसे ऐड हो। अच्छा, वो पूरी वीडियो पे इस तरीके से आपको लाइक हर फ्रेम पे जाके ऐड करना पड़ता है। ठीक है, लेट सपोज मैं इस फ्रेम पे आया, मैंने खुद बनाया हुआ है एक लोगो। तो मैं एक सेकंड रुक के मैं बताता हूँ आपको, इधर ही कहीं होगा। आ, होना तो इधर ही चाहिए। चलें कोई बात नहीं, मैं इधर से फिर अपलोड फाइल। अच्छा, मैं अभी इधर लोगो दिख नहीं रहा, मैं लेट्स सपोज मैं रेहान स्कूल का लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। वही लगा दे। और रेहान स्कूल, ये रहा। ठीक हो जूम का गया। लगा। अब जूम का लगाऊं? चलो आ गया ना, ये नहीं, ये जूम का करिए। लगाऊं। ठीक है। अब इसका लोगो हमारे पास बेसिक इन कलर्स में होता है ना, डिफरेंट कलर्स के अंदर। ये हमें वाइट कलर हटाना है, तो यहाँ से बीजी रिमूवर, ठीक है, बैकग्राउंड इसका रिमूव कर देंगे। रिमूव करके अब आपके ऊपर है आपने किस साइड पे रखना है इस लोगो को। लेट सपोज मैं इसको पहले तो छोटा कर लेता हूँ और मुझे इधर रखना है इसको। ठीक है। अब ये मेरा लोगो भी ऐड हो गया, जो आपने बात की थी लोगो की। अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब हर फ्रेम पे मुझे आके इधर ऐड करना पड़ेगा अपना लोगो, ठीक है। ये मतलब ये एक सीक्वेंस एक पूरा नहीं ड्रैग करके नहीं लेके जा सकते, ये सेपरेट ऐड करना पड़ेगा। ये सेपरेट ऐड करना पड़ेगा। तो फिर जब और अगर आप ट्रांजिशन इसको चाहते हैं कि इसका सीक्वेंस खराब ना हो, लाइक ऐसा ना हो कि ये जो है ना, लेट सपोज ये थोड़ा। एक मिनट अब्दुलरहमान, एक मिनट। ये जो ऊपर हमारी वीडियो के ऊपर एक पर्पल कलर की बार आ रही है, उसको स्ट्रेच करके आखिर तक लेके जाओ जरा। ये वाला। हाँ जी, हाँ, ये वाला। इधर से तो नहीं जाता मैम। ये ऐसी आती है। फिर ओके जब गॉट। वीडियो ट्रांजिशन होगी, ठीक है, हम्म। तो फिर लोगो जो है वो भी ट्रांजिशन उसमें भी होगी। वो फिर अपनी जगह से हिला हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने किया है तो ये मेरा सेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इसको बता। भी अगर आप एनिमेट करना चाह रही हैं, नहीं नहीं, जैसे ये अभी आपने एनिमेट नहीं वीडियो होगा। इनके वो कह दरमियान रही आपने है ये ट्रांजिशन लगाई स्टैटिक थी। रहना चाहिए, ये स्टैटिक रहना चाहिए और बाकी वीडियो पे सिर्फ एनिमेशन ये आनी देखें, चाहिए। वो आपके ऊपर है ना, ये मैंने इस पे एनिमेशन नहीं लगाई, अब ये देखें। ठीक है। बाकी पे मैंने एनिमेशन लगाई हुई है, बट इसके ऊपर मैंने एनिमेशन नहीं लगाई हुई, तो ये एक ही जगह पे रहेगा। अब नेक्स्ट दोबारा वीडियो में आप इसको ऐड करें। जी मैं फिर कर देता हूँ। इधर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है।
इस पे ट्रांजिशन ऐड नहीं है, और सॉरी एनिमेशन ऐड नहीं है। आप तो चलाएं ये इसको। चला देता हूँ, 1 सेकंड रुके। स्टार्ट से अब्दुर्रहमान। From the peaks of the north. मतलब ठीक है, उसको वो अपनी फिक्स जगह एक से जगह। नहीं हिलेगा जी। हाँ, बस मुझे यही पूछना था कि वो अपनी और जगह से ना मूव करे हाँ, लोगो। और अगर आपको लाइक सीक्वेंस वैसे तो खराब हो ही जाता है थोड़ा बहुत। हम्म लाइक हम एक जगह पे जिस तरीके से मैंने इस फ्रेम पे लोगो ऐड कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे दूसरे फ्रेम पे भी ऐड करना है। ठीक है, हम्म तो मैं यहाँ से ऐड करूँ, फिर वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और यहाँ से हमारा सीक्वेंस भी थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। अब देखें, यहाँ मैंने इसको लगा तो दिया, लेकिन वहाँ जो है साइज, एक तो साइज का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। प्लेसमेंट का भी फर्क आ गया। हाँ, प्लेसमेंट का भी फर्क आता है। तो इसका एक छोटा सा और आसान सा तरीका ये है कि आपने जिधर जो पहले आपने ऐड कर दिया पहले फ्रेम पे लोगो, ठीक है, इस पे हम्म क्लिक करेंगी, इसको कॉपी करें, हर फ्रेम पे आके बस क्लिक करके पेस्ट करती जाए। पेस्ट करते जाए, ठीक है। बस वो एक तो सीक्वेंस खराब नहीं होता, दूसरा एक ही जगह पे रहेगा, और प्लेसमेंट भी इसकी खराब नहीं होगी। ये थैंक यू देखें। सो मच। ठीक है। गॉट इट। और थैंक इसमें मीरब का सवाल अब्दुर्रहमान जी। मीरब, मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि बीजी रिमूवर जो है ये प्रीमियम वर्जन में है, तो क्या हम इसे वैसे ही क्रॉप करके लगा सकते हैं? लगा लें। आप फ्री वर्जन में आपके पास दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ऐप्स में जाइए और वहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर को यूज करते हुए आप बैकग्राउंड इरेज करके लगाइए। अगर आप इसको विद बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे क्रॉप करके, तो एक तो वो जो आपका लोगो है वो क्रॉप होके प्रॉपरली अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा वो जो आपकी वीडियो का फ्रेम है ना, वो उस फ्रेम को खराब कर देगा। अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो बहुत अच्छी नजर आए, उसकी क्वालिटी खराब ना हो, तो आप फिर बैकग्राउंड इरेजर को यूज करते हुए इसका बैकग्राउंड इरेज कर लें, और एक बार इरेज करना पड़ेगा, बार बार आपको इरेज नहीं करना पड़ेगा, और आपका लोगो आपके पास हमेशा रहेगा और आप उसको यूज कर सकते ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। हैं। Any participants, any question regarding the faceless video or this task? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज। कैमरा इज अपडेट टू इंटरनेट कनेक्शन। ऑल सेट। ओके जी पार्टिसिपेंट्स, ये था हमारा जी मिसिर। जी तो मैं ये पूछ रही थी कि ये आप लोग मुझे कोई ऐसे प्रोफेशनल एडिटर की यूट्यूब का चैनल बता सकते हैं जो कि हमें ट्रिक्स और टिप्स वगैरह देता, ताकि हम वहाँ से थोड़ा सा अप टू डेट रहें। ये सजेशन। तिरमन, क्या शहरियार भाई का यूट्यूब चैनल बना? पता नहीं। जरा चेक करके देखो। मैम उनका आईडी का बता दें, हम वहां से देख लेंगे। फेसबुक आईडी पे उनकी वीडियोस होंगी ना, अगर वो। फेसबुक ओ, अब्दुल रहमान भाई का होगा। अब्दुल रहमान भाई आपका ही चैनल होगा, आप बता दो। इनका कोई फेसबुक गाइडेंस आईडी नहीं मैं अभी देते। देख रही हूँ। जावेद भाई, बहुत इनका पुरानी फेसबुक अभी, आईडी मैं अभी देख रही हूँ, उन पे काफी सारी नीचे इनका जाना काम। पड़ेगा आपको। जी जी, मैं काफी नीचे जा चुकी हूँ तकरीबन आपकी आईडी पे। अच्छा। ढूंढने वाले सब ढूंढे थे। तिरमन जल्दी बताओ, शहरियार भाई के चैनल है? अगर होगा तो काफी सारे शहरियार भाई हैं, मैं देखता हूँ, टाइम हाँ मैं लगेगा। वही देख रही। शहरियार कुरैशी उनका नाम है, और हम्म। मुझे नहीं लगता कि उनका यूट्यूब चैनल है। अर्निंग वाला, अर्निंग वाला। नहीं, वो कोई वाला नहीं थी। ऐसे कोई वाला नहीं है। नहीं, उनका कोई वाला नहीं था। वो बेसिकली रिहान फाउंडेशन के पे होते थे, वो रिहान स्कूल सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। नहीं। कॉलेज में सिर्फ मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हम जिससे सीखा था वो मेरा भी एक दौलत साहब का कुरंगी का स्टूडेंट था, जिनसे मैंने सीखी थी फेसलेस वीडियोस। और फिर ग्रेजुएशन स्टोरी जब मैंने इम्प्रूव की, और जब तिरमान आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, ये हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और बहुत ही अच्छे भाई थे, शहरियार कुरैशी भाई। अब अ, हमारी यहाँ फाउंडेशन के सिस्टम के साथ काम नहीं करते, अब वो कहीं और है, उनसे हमने सीखा। हाँ, अगर आपने वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखना है, मुझे याद आ गया, तो वो एक है
बहुत अच्छे हैं। अब पता नहीं उनके यूट्यूब चैनल पे वो पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए, लेकिन वो करते हैं फोटोग्राफी और वो उसी के जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स बना के ऐड करते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग वीडियो एडिटिंग की चीजों को आपको गाइड कर देंगे। वजियोग्राफी के नाम से उनका इंस्टाग्राम चैनल है, आप चाहें तो उनको फॉलो कर लें तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। और यूट्यूब पे उनका क्या चैनल है मुझे नहीं पता, इंस्टाग्राम पे ही है, तो अगर आप इंस्टा से फॉलो करेंगे तो वहां पे यूट्यूब का कोई ना कोई लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। उनके साथ ही एक उनके को असिस्टेंट है, को पार्टनर है मतीन अलवी, वो वीडियो प्रोमोज पे काम करते हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकती हैं। मतीन भाई मेरी फेसबुक पे एडिड है, आप वहां से उनका लिंक लेना चाहे तो मतीन भाई का वहां से भी मिल जाएगा, और अगर मतीन अलवी आप खुद भी लिखेंगे तो प्रॉब्लली मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिला तो टिपका दीजिएगा, मैं कल या कुछ में देख के आपको भेज दूंगी। अच्छा मैम, जी मिस जवेद आपका हैंड रेज। कि आपने जो बैकग्राउंड रिमूवर का इरेजर का बताया, तो उसमें जब मैंने इरेज किया है उसमें वो जो डॉटेड मतलब बिल्कुल ब्लैंक नहीं आ रहा, उसमें डॉट्स पीछे जो ब्लैंक उसका बैकग्राउंड है उसमें डॉट्स डॉट्स डॉटेड है वो ना, आप ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चेक करेंगे? मैम यही है अब्दुल रहमान शेख, अब्दुल रहमान अर्निंग वाला। ये है ना अर्निंग वाला, तो ये खुद है अब्दुल रहमान, क्योंकि जी उसको ढूंढना बहुत पसंद है इसलिए उसने अर्निंग वाला अपने नाम के साथ रखा हुआ है। अच्छा जी। है देखिए इसमें ये भैया डॉटेड कि जब हम मैं यही जी बताने लगी कि जब हम बैकग्राउंड इरेज कर देते ना तो ये पीएनजी बन जाता है। पीएनजी मींस कि आप इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं रहेगा, ये ऐसे ही आप यूज करेंगे। इसको डाउनलोड कर लें, इसका कोई भी आपको बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। डॉटेड का मतलब है इसका सारे बैकग्राउंड पीछे से खत्म हो गया। नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर, आप बैकग्राउंड नहीं है, आप विदाउट बैकग्राउंड इसको यूज करेंगे। अभी जो आप अब्दुल रहमान ने जो अभी जूम का जो अभी क्लियर किया था, जो लोगो लगाया था, तो उसमें तो वो बिल्कुल अच्छा ट्रांसपेरेंट सा जो होता है वैसा आ रहा था, मतलब लाइक ये मैं अगर मैं चाहती हूँ आपसे कि ये रेहान ये ट्रांसपेरेंट तब आएगा जब आप इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर ऐड करोगे। जब आप कलर ऐड करोगे जो नीचे लिखा हुआ है ना रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट, वो व्हाइट में लिखा हुआ है। अभी आप अपने जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स के साथ बैकग्राउंड लगे हुए हैं तो वहां पे ऑब्जर्व करें, तो वो आर के नीचे जो लिखा हुआ है ना रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट व्हाइट में लिखा हुआ है। तो ये जो इसका बैकग्राउंड है ऑलरेडी वो पीएनजी में चला गया है, जिसकी वजह से वो आपको व्हाइट कलर नजर नहीं आ रहा। जब आप इसी लोगों को किसी दूसरे कैनवस पे जाके अपलोड करेंगे तो आपको वो व्हाइट कलर बहुत प्रोमिनेंट नजर आएगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इसको फिर ऐड कर लीजिएगा कैनवा में जाकर। जी मिस लैला। मैम वैसे मैंने तो किसी भी मतलब ऐप को प्रो टाइप यूज नहीं किया, तो इसलिए मुझे गाने पे टाइम भी बहुत लगता है। परफेक्ट और वर्ड से मिलती हुई चीज को ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन मैम मैं ना ये रिमूवर की बात करी थी, जैसे ये अभी मिस बात करी थी। अच्छा एक दफा मेरे साथ ऐसे हुआ, ऑब्वियसली मैंने ना चीजें सेव की हुई हैं, एक दफा ही रिमूव करना पड़ता है जरा ध्यान से। तो उसमें ना मैम एक चीज, एक मेरा ये पता नहीं जो हमारे स्कूल इदारे एआई बूट कैंप का ये जो लोगो है, इसके पीछे या पता नहीं मेरी पिक्चर के पीछे वो ब्लैक एक आ गया था पेज, और वो नहीं हट रहा। वो वैसे वहां मुझे लगता है जैसे पीछे नहीं है कुछ, जैसे अभी आप कह रही थी पीएनजी फॉर्म में है, बट वो जब मैं उसको किसी और सेव किया है तो वो एक ब्लैक बैक पे उसके साथ पेज अटैच महसूस होता है। वहां से जैसे लेके आती हूँ तो वो एक ब्लैक मतलब उसके बैक पे एक ब्लैक ब्लैक कलर महसूस होता है। वहां मैंने ऐसा क्या ऐड किया है या क्या मैंने ऊपर नीचे छेड़ा है कि मेरे साथ ये वाला मसला आया है एक एक में, वरना हालांकि अब ऐसा नहीं होता। नहीं पता, स्क्रीन शेयर नहीं होगी, नहीं समझ में आएगा कहाँ क्या मसला है। ओके मैम, मैं जी फिर करके देखूंगी, फिर भाई आया है, तो फिर आपसे पूछूंगी। ओके थैंक। यही मदीना भी भाई हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ओके जी मिस जवेरी, आपका अभी भी कोई सवाल है? नहीं, ओके गॉट इट। मिस गुलशान मुनव्वर। मिस लाला आपसे बात करनी थी, अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं नहीं प्लीज जरूर बताएं आप।
आपने कहा ना कि मुझे 1 घंटों लग जाते हैं, तो मेरे ज़हन में एकदम से इतना क्लिक हुआ कि आप ना, मुझे लगता है कि परफेक्शनिस्ट हैं। दुनिया नहीं में नहीं 2 तरह के नहीं लोग, नहीं 2 मैम तरह के आपने लोग वैसे तो हैं, जरूर टाइप ए आप से, जी जी टाइप बी मैम हैं। तो जी मुझे जी लगता है मैम कि आप टाइप ए में से हैं। टाइप ए वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परफेक्शनिस्ट ढूँढने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने हर चीज़ को ना, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाती, उनको सुकून नहीं आता कि ये जो चीज़ है ना, ये तो ठीक नहीं हुई अभी तक। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे ऐसे लगता है हमारा जो भी टीचर हमें इस प्लेटफॉर्म पे समझाने आता है ना, तो वो इतनी मेहनत लगाता है। देखिए आप मैम मरियम को ले लेते हैं, तो ये क्या टाइम हो रहा है, 10:55, 11, 11:30, लगातार ब्रेक का भी नहीं कहती कि मैंने पानी का एक घूंट पीने दे मुझे प्लीज तो मुझे जाना है, या कोई तो इतना स्ट्रगल हमारे टीचर करते हैं। मेरा दिल करता है मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के जहां भी काम करूँ ना, तो मेरे टीचर का फील आए कि मैंने उसको उतने दिल से कोशिश की है, कोशिश थोड़ी-सी, कि उन्होंने जितनी मोहब्बत और तवज्जो से सिखाया है, चलें थोड़ा उसका 10% भी मैंने अगर उसको असर लिया है, तो मैं उनका और अल्लाह का थैंक्स करूँगी। थैंक यू कि आपने कॉम्प्लीमेंट किया। नहीं, नहीं, मतलब अच्छी चीज़ है कि आप हर चीज़ को जो इस तरह से करने की कोशिश करती हैं। मुझे तो ये चीज़ फ़ील हुई कि मैंने एक वक़्त में ये रिसर्च पढ़ी थी टाइप ए और टाइप बी की, तो मेरे ज़हन में क्लिक हुआ कि आप टाइप ए हैं। अच्छा मैम, असल में मेरे ज़हन में ये चल रहा होता है कि जो मेरे टीचर्स जैसा कि अभी मैंने इन मैम का नाम लिया, सर नसीमुल्लाह साहब, माशाल्लाह वो देखें इतना सारा दिन इतना बर्डन लेके आते हैं, बट स्टिल हमारे लिए बैठे होते हैं। मूसा भाई बैठे होते हैं, ये सारे आप हमारे बैच फेलो बैठे हैं। ऑब्वियसली आप में से किसी के छोटे बच्चे भी होंगे, लेकिन हर चीज़ को छोड़ के हम यहाँ एक मैम हमें इतने उससे पढ़ा रही होती हैं ध्यान से। तो मुझे ऐसे एवरी टाइम एक बड़ा गिल्ट होता है कि हमने वैसे जी जान लगा के हमने स्किल लेनी है और हमने दिखाना है कि हमारी जो भी मैडम आई हैं, उन्होंने हमारे ऊपर इतनी मेहनत की है, तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे ये आईडीज पे शो करना है कि ये हमारी टीचर्स हम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है। थैंक यू सो मच मिस साहिबा। जी थैंक यू सो वेरी मच मिस गुलशान, मिस लैला। मिस एनी पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन? जी मिस मिस जवेरिया। अटेंडेंस शीट भिजवा देंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो वो मैं उसको ओके मार्क करना गॉट भूल इट, मैं गई। अभी दोबारा लिख शेयर थैंक यू, करूँ। थैंक एक यू सो मिनट मच, दीजिए थैंक तो। यू। एक let's see, let's see. Okay. नसीमुल्लाह भाई ने ग्रुप में भी व्हाट्सएप में आपके पास अटेंडेंस का लिंक भेज दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर किसी का मिस हो रहा था तो परेशान नहीं हो, व्हाट्सएप के ग्रुप को बैच 11 डिस्कशन वाले में देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अब मैंने ये भेज दिया है, जिसकी अटेंडेंस रहेगी आप मार्क कर, ठीक है? जूम चैट के थ्रू। Okay, participants, thank you so very much for joining today. We'll see you tomorrow at same time, and hope कि बहुत सारे लोगों की छुट्टियां एंड हो गई होंगी। कल से आप सब बैक टू द नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करेंगे, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नया सेशन स्टार्ट करने वाले होंगे कुछ लोग, और कुछ का ऑलरेडी ऑन गोइंग होगा, तो उन्होंने अब अपने बच्चों के साथ दोबारा जाके ऑन ड्यूटी बहुत सारे काम करने होंगे। बट मैंने जैसे पहले रिक्वेस्ट की कि आप 2 महीने के बाद कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए, कोशिश कीजिएगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आप में डिफरेंस जरूर नोटिस करें, और आप पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ जो है क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंज आता है, तो एआई आपके लिए बहुत अवेलेबल है ऑल द टाइम और बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कोशिश करिएगा कि ज्यादा एआई को यूज कीजिएगा, ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए, आपकी जिंदगी आसान हो जाए। जिनको प्लानर्स बनाने हैं, आज रात बैठ के एआई को एक प्रॉम्प्ट दें, 15 प्लानर्स आपके अगले 2 हफ्तों के तैयार हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। एक साथ ही 15 प्लानर तैयार करके आराम से सुकून से चिल करें, और अपनी जितनी वर्कशीट्स बनवानी है, टॉपिक चैट जीपीटी को बता दें, जेमिनी को बता दें, सारी वर्कशीट्स बन जाएंगी। जिसको जो इंटरवेंशन प्रिपेयर करनी है वो प्रिपेयर कर लें। कोई कॉपी चेकिंग का मसला आता है, जेमिनी आपके लिए अवेलेबल है, जेमिनी से हेल्प ले लें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्लास में आके डिस्कस कर लीजिएगा। विल गो फॉर इट कि आप किस तरह से अपनी जॉब जेडीज को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे एईओ भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी टीचर्स को एवेलुएट करने के लिए और सारी चीजों करने के लिए। तो होप सो कि स्पीक भाई भी एआई को एज ए एईओ बहुत अच्छे से यूज करेंगे। So thank you so very much. With this note, wish you very good luck for tomorrow and have a very wonderful day by tomorrow.
थैंक यू एंड गुड नाइट, स्लीप राइट, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल रिलैक्स फ्री होके सोइए, कल का दिन